टेक्सटाइल पर्व के दूसरे दिवस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जीएफआरआरसी के तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे कुछ गेस्ट हिंदी भाषी है, इसलिए एमओसी हिंदी में हो रही है, तो हम सब गुजराती और सब लोग हिंदी समझते ही हैं, तो इसके लिए आप इस मेरी हिंदी को स्वीकार करें। धन्यवाद। कुछ रीजन से आज के हमारे प्रमुख श्री रमेश भाई उपस्थित नहीं हैं, तो उनकी जगह पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री विजय भाई मेवावाला अपना स्वागत प्रवचन करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं विजय भाई को कि स्वागत प्रवचन से इस कार्यक्रम का आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। આજના ટેક્સટાઇલ પર્વના બીજા સેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તમને ખબર હશે કે આપણું પહેલું સેશન 9 તારીખે ઘણું સક્સેસફુલ રહ્યું અને આજે આ બીજું સેશન છે। એમાં મધુસૂદન ન્યૂઝના ડાયરેક્ટર શ્રી દીપકભાઈ મુંદ્રાજી, શ્રી રિટેશ દિલ્હીના સંદીપ કપૂરજી અને આપણા ગિરીશ ગ્રુપના ગિરીશભાઈ લુથરા ના ટૂંક સમયમાં અહીં આવશે, તે આજના આપણા મહેમાન છે। તદુપરાંત અહીં ઉપસ્થિત તમામ ઉદ્યોગ સાહસિકોનું ટેક્સટાઇલ પર્વના બીજા કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણા માટે ગર્વની વાત એ છે કે સુરત વિશ્વમાં ટેક્સટાઇલ હબ તરીકે પ્રખ્યાત છે। એમએમએફ કાપડ બનાવવાના ક્ષેત્રમાં સુરતે આગવું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે। સુરતની મોટાભાગની વસ્તી ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ સાથે પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ રીતે સંકળાયેલી છે। સુરત આજે કાપડ ઉદ્યોગમાં દેશનું સૌથી મોટું હબ છે, ત્યારે શહેરમાં દૈનિક 5 લાખ કરોડ મીટરનું અહીં ઉત્પાદન થાય છે, આપ સૌ જાણો છો। બદલાતા સમયની સાથે સુરતને પણ મોડર્નાઇઝેશન તરફ દોડ મૂકી છે અને આજે સુરત ભારતમાં સૌથી મોટું મોડર્ન વિવિંગ ધરાવતું શહેર બન્યું છે। જ્યારે નવા વોટર જેટ એરજેટ આવ્યા અને રેપિયર આવ્યા ત્યારે ઘણા લાગ્યા 1000, 1500, 2000 મશીન સુરતમાં ઇન્સ્ટોલ થયેલા। એટ પ્રેઝન્ટ આજે લગભગ 1,50,000 થી વધુ ઓટોમેટિક આફ્રિકા ઇન્સ્ટોલ છે। એટલે આપ જાણી શકો છો સુરતની હરણફાળ કેટલી જોરમાં આગળ ચાલી રહી છે। આગામી સમયમાં વિવિધ યાર્ડનો ઉપયોગ કરી સુરત નવું કપડું બનાવવું જોઈએ અને તેની માર્કેટિંગ તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ। હવે સમય ઇનોવેશનનો છે। કોમ્પિટિશન ભવિષ્યમાં કિંમત પર નહીં પણ ક્વોલિટી અને ફીચર્સ પર રહેશે। ક્વોલિટી સારી હશે તો જ આપણું કપડું વેચાશે, એક બધાએ ગાંઠ બાંધી લેવાની તો જ આપણો વિકાસ છે। વિશ્વમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટના ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં વિશેષતા હોય છે, સુરતે પોતાની વિશેષતા વિકસાવવી પડશે, જેમાં ગ્લોબલી કઈ પ્રોડક્ટમાં નંબર 1 બનવું તે પોતે નક્કી કરે તે દિશામાં આગળ વધવું પડશે। ભારતમાં કાપડના બ્રાન્ડની વાત કરીએ તો વિમલ, દિગ્જામ, અરવિંદ, રેમન્ડ આવે છે। ભવિષ્ય બ્રાન્ડનું જ છે। બ્રાન્ડ હશે તો કપડું સારું વેચાશે। સુરતમાં ગાર્ડન વરેલી, પ્રફુલ્લ, પરાગ જેવી બ્રાન્ડ ઊભી થઈ। સુરતે સાડીઓમાં તો બ્રાન્ડ બનાવી છે, પણ હવે સમય છે ગાર્મેન્ટ અને કાપડમાં બ્રાન્ડ બનાવવાનો। આપણે પહેલા સેશનમાં ગાર્મેન્ટ બાબતે આપણા વર્મા સાહેબે ઘણી વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી અને શા માટે આપણે ગાર્મેન્ટમાં પાછળ છે તે સ્કિલ લેબરના હિસાબે એ વર્મા સાહેબે વિસ્તૃત માહિતી આપી આપણે। અત્યાર સુધી પોલિસ્ટર કાપડમાં કોઈ બ્રાન્ડ બની નથી। જો તેમાં સુરત બ્રાન્ડ બને તો એ ગર્વની વાત રહેશે। હાલમાં એક્સપોર્ટમાં સુરતથી સીધું એક્સપોર્ટની કિંમત ઘણી ઓછી છે। વર્ષ 2022-23માં સુરતથી સીધા એક્સપોર્ટની કિંમત માત્ર 1900 કરોડ થઈ છે, કારણ કે સુરતથી મહત્તમ એક્સપોર્ટ મર્ચન્ટ એક્સપોર્ટ થકી થાય છે। એ મર્ચન્ટ એક્સપોર્ટ દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નાઈ, કલકત્તા જેવા શહેરોમાં વસેલા છે। સુરતે હવે સીધા એક્સપોર્ટ કરવા માટેની તૈયારી દર્શાવવાની જરૂર છે। ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા મિશન 84 હેઠળ જે કોઈ પણ ઉદ્યોગકારોને એક્સપોર્ટ કરવું હોય તેની સંપૂર્ણ મદદ કરવા માટે આ સિસ્ટમ વિકસાવવામાં આવી રહી છે। અત્યારના હાલમાં પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વગાસિયાનું M84 નું જે મિશન છે તેમાં એક્સપોર્ટ જે $1 ટ્રિલિયન કરવાની નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની જે હાક મારી છે મોદી સાહેબે, તેમાં 84 મિશન અંતર્ગત આપણે કેટલું એક્સપોર્ટ કરી શકીએ અને $1 ટ્રિલિયન માં કેટલો સરકાર શ્રી મોદી સાહેબને આપણે સપોર્ટ કરી શકીએ તે આપણે નક્કી કરવાનું છે।
અને તેની સાથે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીનું પણ જે મોદી સાહેબનું સપનું છે તેમાંથી એ નિયર અબાઉટ 1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી આપવાનું આપણા પ્રમુખશ્રીએ ગુજરાતમાંથી આ લક્ષ્ય બનાવ્યું છે કે અમે મોદી સાહેબને 1 ટ્રિલિયન ડોલરની કરી આપીશું. 4 ટ્રિલિયન ડોલર મોદી સાહેબે હવે ગુજરાત સિવાય બીજા વિસ્તારમાંથી એકત્રિત કરવાના રહેશે એવું પ્રમુખશ્રીએ બંધારણ આપ્યું છે. સુરતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને નેતૃત્વ પૂરું પાડે છે જે ભારતમાં આગામી સમયમાં દિશા અને દશા નક્કી કરવાનો યોગ્ય પ્લેટફોર્મ છે. સુરતમાં સંપૂર્ણ ટેક્સટાઇલ ચેઇન ઉપલબ્ધ છે. આજે આપણી પાસે સુરતમાં દરેક ક્ષેત્રમાં ગાર્મેન્ટમાં બી લો તો ગાર્મેન્ટમાં તમારી પાસે ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ અહીંયા ઉપલબ્ધ છે. ફક્ત સ્કિલ વર્કરની જરૂર છે. દોરો, ધાગો, કપડું, બટન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બધું સુરતમાં ઉપલબ્ધ છે. યાનમાં જોઈએ તો એમજીપીટીએ થી લઈને યાનમાંથી કાપડનું પ્રોસેસિંગ તથા તેમાંથી ગાર્મેન્ટ બની આખી સપ્લાય ચેન ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પણ નવું પ્રોડક્ટ વિકસાવવું હોય તો ઇનપુટ થી લઈને ફાઇનલ આઉટપુટ સુધી જવું પડે. યોગાનું આ તમામ પ્રક્રિયા આપણા શહેરમાં થાય છે. હું આશા રાખું છું કે સુરતમાં ઉપલબ્ધ ઇકોસિસ્ટમ ટેક્સટાઇલ વીકમાં ચર્ચાયેલા મુદ્દાને ધ્યાને લઈને ઉત્તરોત્તર સુધારો થશે અને વૈશ્વિક સ્તરે કાપડ ક્ષેત્રે બ્રાન્ડ સુરતને વધુને વધુ ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જશે. અંતે હું મારા વ્યક્તિત્વને પ્રતિસાદ આપવા બદલ અહીં ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને ઉદ્યોગકારોનું હાર્દિક અભિવાદન કરું છું અને મારા શબ્દને અહીં વિરામ આપું છું. વેલકમ ટુ ઓલ ઓફ યુ ઇન અ સેકન્ડ સેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ ફોરમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી. अति सुंदर स्वागत प्रवचन के साथ साथ में इन्होंने वस्त्र उद्योग के बारीकियों के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ अच्छी तरह से समझा पाए. ब्रांड के इम्पोर्टेंस के बारे में भी विजय भाई ने जो कहा वो यहाँ के उपस्थित सभी मेंबरों को एक गांठ पारनी चाहिए कि वी आर नॉट जस्ट सप्लायर, वी आर समथिंग इन फ्यूचर वी आर बिकमिंग सम ब्रांड. तो इस दिशा में हम सबको विचार करने योग्य ये प्रवचन था. इस प्रवचन के बाद हमें आगे बढ़ना है इस कार्यक्रम की ओर. पर उसके आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर उपस्थित श्री भरत भाई गांधी, दीपक भाई मुंद्रा जी, महेंद्र भाई काजीवाला जी, श्री अक्षय भाई शेठ, प्रफुल्ल भाई शाह और इंद्रवदन भाई मादेवाला जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनकी उपस्थिति की यहाँ पर हम नोट लेते हैं. हमारी भारतीय परंपरा के रूप हम हमारे जो पदाधिकारी हैं उन लोगों को निवेदन करते हैं कि हमारे आज के जो मुख्य अतिथि और जो वक्ताएं हैं उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया जाए. तो मैं अनुरोध करूंगा श्री गिरधर गोपाल मुंद्रा जी को कि हमारे आज के मुख्य वक्ता और श्री ब्रांड के चेयरमैन श्री संदीप भाई कपूर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें. आई एम वेरी मच सॉरी, गिरधर गोपाल मुंद्रा जी के नंबर बाद में लेते हैं. पहले विजय भाई मेवावाला जी. चलो, ये एक बहुत बढ़िया स्वागत है कि हम सब मिलके इनका स्वागत करते हैं. इसी तरह का स्वागत सब मिलके मैं चाहता हूं कि इस स्वागत में भरत भाई भी जुड़े और दीपक भाई मुंद्रा जी का भी स्वागत करें. थैंक यू वेरी मच बेहतरीन स्वागत करने के लिए. कपूर साहब, आप हमारे इस पर्व में पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है. और ये कार्यक्रम क्यों योजा जा रहा है और ये कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये कार्यक्रम क्यों डिजाइन किया गया है और आप यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रोता भी उपस्थित हैं, उनको ये कार्यक्रम से क्या लाभ मिलेगा, उनका जो भी कार्यक्रम के बारे में श्री गिरधर गोपाल मुंद्रा जी अपडेट करेंगे.
श्री विजय भाई, इसी तरह से सभी विजय भाई मेवावाला, गिरधर गोपाल मुंद्रा जी और महेंद्र भाई, प्रफुल्ल भाई और भरत भाई को मैं निवेदन करता हूं कि हमारे दूसरे वक्ता श्री दीपक भाई मुंद्रा जी का पुष्पगुच्छ से मोमेंटो से हार्दिक स्वागत किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये विदित है कि ये दीपक मुंद्रा जी अपने गिरधर गोपाल मुंद्रा जी के सुपुत्र हैं और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम के अंदर उनके बेटे को भी सम्मिलित करने के लिए हम आप सबके आभारी हैं। गिरधर गोपाल मुंद्रा जी को मैंने कई सालों से देखा है कि जब कभी कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन हमेशा देखने को मिलता है कि जैसे घर में कोई प्रसंग हो, और वो टेंशन जब ये कार्यक्रम की समाप्ति पर एक संतुष्टि के रूप में देखा जाता है कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एक बहुत ही अच्छे बड़े प्रसंग के रूप में हमने समाप्त किया, तो ये खुशी उनके चेहरे पे स्पष्ट रूप से झलकेगी जो हम आज उसके साक्षी रहेंगे। तो ये मुंद्रा जी हमारे गिरधर गोपाल मुंद्रा जी GFRRC के अध्यक्ष, इनको मैं अपने इस कार्यक्रम के बारे में और हमारे GFRRC के मिशन के बारे में अवश्य बताएं। प्लीज मुंद्रा जी। थैंक यू परमल भाई, बहुत अच्छे ढंग से आप एमओसी कर रहे हैं, खूब खूब आपका अभिनंदन। चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट श्री विजय मेवावाला साहब, आज के हमारे मुख्य वक्ता व मुख्य मेहमान दिल्ली से पधारे श्री संदीप कपूर जी साहब, श्री रिटेल के जो मानक ऑनर हैं, व हमारे पास प्रेसिडेंट श्री महेंद्र भाई काजीवाला, प्रफुल्ल भाई, भरत भाई गांधी, FIASP के चेयरमैन और सभी पवन जी अग्रवाल और सभी आप उद्योजक से पधारे हुए आप सभी व्यापारी भाइयों, बंधुओं, सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपग्रेड करने और सूरत की ब्रांड इमेज को बनाने के लिए ये GFRRC व चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिछले 8 वर्षों से लगातार टेक्सटाइल प्रो का आयोजन कर रही है। जैसा परमल भाई ने बताया कि ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्रांड इमेज कब बनेगी? जब जो चल रहा है लेटेस्ट में उसकी जानकारी कई बार सभी लोगों को नहीं हो पाती है, तो एक्सपर्ट स्पीकर के माध्यम से जानकारी देंगे तो मैं सोचता हूँ इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। टेक्सटाइल से संबंधित सभी सेक्टर्स पर हम सेमिनार्स का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। इस वर्ष थीम रखी है हमने फैब्रिक्स कि फैब्रिक्स लेटेस्ट में कौन से चल रहे हैं, उनकी वर्ल्ड के जो परमानेंट मार्केट में कैसी डिमांड है, उसको कैसे बनाएं, उसकी कास्टिंग कैसे हम अपने उसमें रखें, ये सब बात की जानकारी एक्सपर्ट स्पीकर्स हमें निश्चित तौर पर देंगे। GFRRC में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्क्लेव, टेक्सटाइल के कोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक्सटाइल के कोर्सेज, सभी ढंग के कोर्सेज यहाँ पर आयोजित होते हैं, जिसमें व्यापारी भाई, इंजीनियर्स, चार्ट अकाउंटेंट सभी लोग उसमें आते हैं और ABCD टेक्सटाइल की रहती है। सेजलबेन जो है, आप खड़े हुए सेजलबेन, ये पूरे इसका संचालन करती है और यहाँ 3 साल से कोर्स एकदम फोर्सली चल रहे हैं और इसका फीडबैक ऐसा मिला है कि भाई हम जो व्यापार तो बहुत लंबा कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कर रहे हैं, पर उसकी हमको डीप नॉलेज नहीं थी, तो कहीं भी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता था व्यापार करने में, तो वो कंसेप्ट क्लियर हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बी इंजीनियर्स, ये सब लोगों का फीडबैक यही है। सेजलबेन, मैं सही बोल रहा हूँ ना, आपके पास फीडबैक यही है। ये कुछ मैं सेजलबेन से बोलूँगा 2 मिनट इसके बारे में आप जरूर बताना बाद में कोशिश। पुनः आज के इस नवे टेक्सटाइल पर्व पर पधारे हुए आप सब भाइयों का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। बंधुओं, भारतवर्ष आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन के बाद भारत फैब्रिक्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फैब्रिक्स की खपत चीन में 40 बिलियन यूनिट, यूएस में 17 बिलियन यूनिट्स, भारत में 6 बिलियन
और जापान में 3.3 बिलियन रीजन कंजप्शन हो रहा है। आने वाले समय में कपड़े का सबसे बड़ा बाजार भारत होने वाला है। तो आज का प्रश्न यही है कि भारत के बाजार इस विशाल विस्तार के लिए क्या तैयार है? हाँ, जवाब है हाँ, हम तैयार हैं। जरूरत है हमें कमिटमेंट की। ऐसे जो आयोजन होते हैं वहाँ पर जो एक्सपर्ट स्पीकर हमें जानकारी देंगे वो सीरियसली आकर सुने समझें। आज मान लीजिए आज अपने संदीप कपूर जी यहाँ पर आए, इनके बारे में आप देखेंगे आज क्या पूरा 101% फैब्रिक्स सूरत के खरीद रहे हैं। और गारमेंट का कितना बड़ा रिटेल का कितना बड़ा काम और गारमेंट के में आप पूरा डील कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ 200 से ऊपर आपके आउटलेट है यहाँ पर, न केवल इंडिया बल्कि अब्रॉड में भी आपके आउटलेट चल रहे हैं। और योग से कोठारी से आपका डीलिंग भी चल रहा है, वो हमारे ऑफिस है। हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल साहब ने बताया है कि 2030 तक हमारा एक्सपोर्ट जो है $40 बिलियन होना चाहिए। अभी लगभग 40 के नीचे, ये 38 के आसपास है। और टोटल टेक्सटाइल का टर्नओवर लगभग 340 से 350 बिलियन US$ होना चाहिए। मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें 2027 तक पूरा करना चाहिए। भरत भाई गांधी फियास्पी के चेयरमैन बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारी जो समस्या आती है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, सरकार की तरफ से कई बार असुविधाएं खड़ी हो जाती हैं। चूंकि उतना व्यापारी और सरकार में ही अंतर है कि प्रैक्टिकल अनुभव उतना नहीं हो पाता है अधिकारियों को। तो हमारे भरत भाई एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बड़े मीठी भाषा में बड़े सरल ढंग से और कन्विंस करने का जो एक कमिटमेंट होना चाहिए, जो एक मात्रा होना चाहिए, वो भरत भाई में है। हमने उसका उदाहरण देखा इसके इनाग्रेशन पर्व के अवसर पर 9 तारीख को, जब एडिशनल टेक्सटाइल कमिश्नर श्री वर्मा साहब बॉम्बे से स्पेशल आए थे, तो उन्होंने स्पेशल तारीफ की कि भाई जो मैं बताना चाहता था व्यापारियों की समस्याएं, व्यापारियों के लिए क्या हम सुविधाएं दे रहे हैं, किस ढंग से जो BIS का प्रॉब्लम आ रहा है, ये भरत भाई ने इतने अच्छे ढंग से बता दिया। मैं सोचता हूँ 25 से 30 मिनट आपने बात को रखी है और ये बात एक्सटेम्पोर एट दैट टाइम। तो ये हम ताली बजाएगा भरत भाई के लिए, इतनी सुंदर ढंग से आपने कन्वर्ट किया। तो ऐसे ऐसे लोग जब सामने आते हैं जो कि आज बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इतना समय देते हैं चैम्बर के लिए मतलब इंडस्ट्री के लिए समय देते हैं कि भाई इंडस्ट्री यहाँ की कैसे अपग्रेडेड हो, कैसे ब्रांड में, बोलने से ब्रांड में नहीं बनने वाली है। वर्ल्ड के जो प्रोमिनेंट मार्केट है वहाँ क्या चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसकी हमें जानकारी लेना पड़ेगी। आज से 50 वर्ष सूरत में क्या था, सबनम, पनामा, डुप्लीकेट लिनन, जो कि यहाँ तक पहले और यहाँ सुखड़ जाता था। ये सूरत का पहले आइडेंटिफिकेशन था। अब क्या है, सूरत के फैब्रिक्स फैशन के रूप में चल रहे हैं। बिना पॉलिस्टर के कोई फैब्रिक्स नहीं बनता वर्ल्ड में। तो आज पॉलिस्टर में भी हमारा आज सेकंड प्रोडक्शन में हम लोग आते हैं। बंधुओं, मैंने कपूर साहब के बारे में बताई दिया आपको, और आपसे हम ये अपेक्षा ये रखेंगे कि जो कंफ्यूजन है हमारे बीच में, सूरत का फैब्रिक्स की ब्रांड इमेज कैसे बने। 9 साल तो हो गए हमको बोलते बोलते, मगर अभी हमने जैसे बताया कि 50 साल पहले यहाँ से धोते थे, वहां से उड़ जाता था। वहां से कम इतने तो आए हम लोग कि वर्ल्ड के जो MMF का जो प्रोडक्शन है उसमें 80% हमारा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ तक तो हम आ गए हैं। यस, थैंक यू सर। अचीवमेंट। फूल को अपनी खुशबू नहीं आती है, बट मैं दिल्ली में बैठ के इसकी खुशबू लेता हूं। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। तो कपूर साहब बहुत अच्छा बहुत बोला आपने। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो गैप है ये थोड़ा हमको सोचने की जरूरत है। यदि हम यहाँ इतने फर्स्ट और सेकंड, हम सेकंड नहीं ये बोल के हम सेटिस्फाइड हो गए, तो मैं सोचता हूँ हमारे गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे प्राइमरी स्टाफ क्या बोलते हैं कि आज इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें 14% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का है, मगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है। तो वो कब बनेंगे, जब हम अपने जीरो डिफेक्ट फैब्रिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब तक हम चीज को नहीं बनाएंगे
देखिए बनती तो यान है, यान से ग्रे है, ग्रे से फिर फिनिश आता है। आप तो सबसे अच्छे, आज आपको हमारा सौभाग्य है कि आपने समय निकाल के यहाँ पधारे और इंडस्ट्री को प्रैक्टिकल अनुभव देने के लिए आप तैयार बैठे कि सिर्फ सूरत 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 तो सूरत के फैब्रिक्स यूज करिए सभी चीजों में, चाहे वो गारमेंट हो चाहे वो दूसरे एरिया हो, सब में आप एक एग्जाम्पल बन के हमारे सामने उपस्थित हुए हैं कि चाइना पर डिपेंड हमें नहीं होना है। ऐसे कितने गारमेंट वाले हमने देखे हैं, गारमेंट का ये अलग सेक्शन हम कॉन्क्लेव करते हैं। गारमेंट जो मैन्युफैक्चर वो क्या बोले कि हम चाइना में हमारा ऑफिस था, हमने वहाँ बंद कर दिया। तो बाद में हम आए सूरत में जब देखा तो भरत भाई माने पिपरमेंट ब्रांड क्या बोले कि भाई हमको जरूरत नहीं पड़ रही चाइना की, वहां से अच्छा और कॉम्पिटिटिव रेट हमको उपलब्ध है चीजें। तो कहने का मतलब आप जैसे एक्सपर्ट लोग कन्विंस करेंगे कि भाई सूरत का फैब्रिक्स बहुत अच्छा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो अधिक ना कहते हुए सूरत के फैब्रिक्स की क्या उपयोगिता है आप जरूर बताएंगे। और ये हमारा सौभाग्य है, परिमल भाई का हम आभारी हैं कि आपने कपूर साहब को बुलाने में जो एफर्ट किया है। कारण क्या है कि होंगे वही सूरमा इस जग में, कपूर साहब की खासियत है कि होंगे वही सूरमा इस जग में जो अपनी राय स्वयं बनाता है। कोई चलता है बद्ध चिन्हों पर और कोई बद्ध चिन्ह बनाता है और कोई बद्ध चिन्ह बनाता है। ये परिमल भाई का बड़ा फेवरेबल ये स्लोगन है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। थैंक यू वेरी मच। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमेशा मुंद्रा जी अपने कवि हृदय होने का परिचय देते ही हैं और इनको देख के हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जरूर याद आ जाती है कि अपने काम के साथ साथ में, अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ में अपनी कविता की पंक्तियों को जरूर साझा करते हैं हमारे साथ। इन्होंने एक दो बातें बहुत अच्छी कही, ब्रांड के बारे में तो है ही है, परंतु सूरत एक ब्रांड कैसे बने, ये एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। पर हमारे पास संदीप जी हैं, संदीप कपूर जी हैं, जो खुद एक ब्रांड है और सूरत से सालाना 1 करोड़ मीटर कपड़ा कंज्यूम करते हैं। ये एक बहुत हमारे लिए, ये आज एक्सपर्ट के रूप में नहीं है पर हमारे एक ग्राहक के रूप में यहाँ बैठे हैं, तो इस तरह से भी हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। इस बीच हम चाहेंगे संदीप कपूर जी को डायस पे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने से पहले मैं सेजल बेन को विनती करूंगा एक बार कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और GFRRC टेक्सटाइल उद्योग के अंदर किस प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं जिनकी वजह से टेक्सटाइल उद्योग के अंदर नए टेक्नीशियंस और नए डिजाइनर्स आगे आए। क्योंकि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1986 से हूँ, 86 से हूँ। मैंने फ्लोर लेवल से लेके रिवॉल्विंग चेयर तक का सफर किया है और आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी यंगस्टर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाना पसंद नहीं करता है। क्योंकि मंत्रा को भी हम देखते हैं कि मंत्रा के अंदर हम जब प्रिंटिंग के अंदर काम करते थे उस समय में हमें दिखता था कि मंत्रा में एडमिशन लेने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी की जरूरत पड़ती थी और आज उसके अंदर 1 या 2 स्टूडेंट भी मिलना मुश्किल हो गया है। तो इस ऐसी दुविधा के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ये प्रयास है ये एक प्रकार से महायज्ञ से कम नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे नई जनरेशन्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी वर्किंग एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा हो गया है, क्लीनलीनेस हो गया है, डिजिटल प्रिंटिंग आ गया है, एम्ब्रॉयडरीज आ गई है, रेपियर और जो कन्वेंशनल लूम्स में से बाहर निकल के एयरजेट रेपियर, वाटर जेट लूम्स के अंदर जा रहे हैं, तो क्लीनलीनेस, एयर कंडीशनिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तो नए लड़कों को इस इंडस्ट्री में वापस से आकर्षित करने के लिए हमें इंडस्ट्री को भी काम करना पड़ेगा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा ही रहा है। तो प्लीज सेजल बेन, आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें और नए लोगों को इस कोर्स में जुड़ने के लिए आह्वान करें। धन्यवाद। सेजल बेन। गुड इवनिंग ऑल। जैसे परिमल सर ने बताया कि यहाँ पे हमारे टेक्सटाइल के रिलेटेड कोर्सेज हो रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं रिलेटेड टू टेक्सटाइल, नॉन टेक्सटाइल ऑल्सो, बट आज का अपना ऑडियंस है टेक्सटाइल का, तो आपको बताएंगे कि टेक्सटाइल के कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले तो ये कोर्सेज करने क्यों हैं और ये कोर्सेज का आइडिया क्या है। तो ये कोर्सेज हैं फॉर एंटरप्रेन्योर्स।
जिनको अपनी फैक्ट्री चलानी है, आपको मशीन खुद नहीं चलानी है, बट उसके साथ अगर कोई फैब्रिक आया तो फैब्रिक को पहचान के सबसे पहले आपको उसका कॉस्टिंग देना पड़ेगा। कोई भी कपड़ा कोई लेके आएगा तो ये बोलेगा कि कितने में दोगे और कब तक दोगे। ये दो क्वेश्चन मेन है, कितने में दोगे, कब तक दोगे। तो वो जो टाइम बीइंग पीरियड है वो आप कम कर सकते हो। ये अपने अलग अलग जो कोर्सेज है उसका मेन एम ये है। अपने कोर्सेज के बारे में बताए तो एक कोर्स है मॉडर्न यार्न प्रिपरेटरी। मॉडर्न यार्न प्रिपरेटरी मतलब यार्न सबको पता है यार्न क्या है, धागा है। यार्न में क्या पढ़ना होता है, बट यार्न जैसे हमने सोचा, जैसे यहाँ पे बात हो रही है, सूरत इज नोन फॉर MMF पॉलिएस्टर। आप जितनी भी बुक्स गूगल पे फाइंड कर लो, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉटन मिलेगा। स्पन का, कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग, पॉलिएस्टर का पूरा अलग। तो जो प्रॉपर्टीज है, कॉटन की प्रॉपर्टी अलग, पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टी अलग, हम तो ब्लेंड करके भी यूज कर रहे हैं। तो अपना फोकस ज्यादा है MMF पे। पॉलिएस्टर पढ़ते हैं, नायलॉन पढ़ते हैं, विस्कोस भी पढ़ते हैं और कॉटन भी सिखाते हैं। अगेन स्पन, कॉटन जो बन रहा है, कॉटन बनने के बाद उसकी प्रोसेस अलग। पॉलिएस्टर में हमें प्रोसेसिंग करना है, मतलब टेक्सचराइजिंग करना है, ट्विस्टिंग करना है, साइजिंग करना है। टेक्सचराइजिंग कॉटन के लिए चाहिए ही नहीं। हमें अगर पॉलिएस्टर में जाना है, फिलामेंट में जाना है तो टेक्सचराइजिंग चाहिए। सो टेक्सचराइजिंग इंक्लूडेड है, ये मॉडर्न यार्न प्रिपरेटरी है। सो मॉडर्न यार्न प्रिपरेटरी कोर्स ऐसा है जिसको यार्न मैन्युफैक्चरिंग करना है, यार्न प्रोसेसिंग करना है या यार्न का ट्रेडिंग करना है, वो लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीवर्स, काफी वीवर्स ऐसे हैं, सबको रीड, पीक, GSM निकालना आता है, एंड्स पर इंच क्या है, पिक्स पर इंच क्या है पता है, बट मार्केट में रोज नया यार्न आता है। मेन तो फैब्रिक में पहचानना है यार्न। सो वो लोग भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, करते हैं। ये है मॉडर्न यार्न प्रिपरेटरी। मॉडर्न यार्न प्रिपरेटरी अपने 12 डेज का कोर्स है, 2 वीक्स। फीस है 8000 प्लस GST। 2 घंटे का सेशन होता है, मॉर्निंग 10:30 to 12:30। सेकेंड कोर्स है अपना फैब्रिक आइडेंटिफिकेशन। कपड़ा कैसे पहचानना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द फैब्रिक। जैसे अपनी बात पहले जो मैंने बताया कि पहले आपको कोई भी फैब्रिक देगा तो पहले आपको उसकी प्राइस डिसाइड करनी है और उसके बाद आपको उसका कब तक दोगे, डिलीवरी कब तक दोगे। तो प्राइस कब डिसाइड होगी, जब उसका कंस्ट्रक्शन आपको पता चलेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, बहुत सारी लैब है, लैब में दे देते हैं। सबको पता है लैब में रिजल्ट कितने दिन में आता है। एक बार आपके पास वो लैब रिपोर्ट आया, फिर उसका यार्न ढूंढ के उसका रेट डाल दो तो कॉस्टिंग मिल गया। ये बहुत इजी है। बट जो टेस्टिंग लैब में जो 4-5 दिन जाते हैं, वो काम आप खुद 1 या 2 घंटे में कर सकते हो। ये कोर्स में सिखाया जाता है फैब्रिक आइडेंटिफिकेशन में। थर्ड कोर्स है अपना फैब्रिक प्रोसेसिंग। ग्रे फैब्रिक बन गया, उसके बाद प्रोसेस। अगेन जैसे यार्न में डिफरेंस है, कॉटन इज डिफरेंट, पॉलिएस्टर इज डिफरेंट, उसका प्रोसेसिंग भी उतना ही अलग है। कॉटन की प्रोसेस अलग, पॉलिएस्टर की प्रोसेस अलग, कॉटन की डाइज अलग, पॉलिएस्टर की डाइज अलग। तो ये सारा कॉटन की प्रोसेस सीक्वेंस क्या है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है, पॉलिएस्टर की प्रोसेस सीक्वेंस, उसके पैरामीटर्स, उसमें क्या डाइज केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारा कोर्स सिखाया जाता है फैब्रिक प्रोसेसिंग में। फिर है टेक्निकल टेक्सटाइल। जैसे अपना गारमेंट है वैसे टेक्निकल टेक्सटाइल, जो टेक्निकल टेक्सटाइल के फैब्रिक्स वो कैसे बनते हैं, उसमें कौन से यार्न्स यूज होते हैं, उसका मार्केट कैसे सर्च कर सकते हो, ये सारा कवर होता है टेक्निकल टेक्सटाइल में। फिर अपने कोर्सेज है वीविंग रिलेटेड, रैपियर वीविंग, एडजेट वीविंग एंड वाटर जेट वीविंग। रैपियर, एडजेट, वाटर जेट, ये वीविंग मशीन, टोटली आप मशीन सीखते हो। वो लंबा कोर्स है 3 महीने का। उसमें कौन से यार्न यूज करने हैं, वो यार्न कैसे पहचानने हैं,
उसके मशीन का पूरा वर्किंग, शेडिंग, पिकिंग, बीटअप कैसे होता है, उसमें फैब्रिक कैसे बनता है, वो फैब्रिक का डिजाइन डेवलपमेंट मतलब टॉपी, जेकार्ड, उसका प्रोडक्शन कैलकुलेशन, कॉस्टिंग कैलकुलेशन, ये सारी चीज ये विविंग के कोर्स में होती है। और उसके अलावा जो कोर्सेज है वो कॉमन है, डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन टेक्सटाइल्स। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सेजल बेन, आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चलते हुए GFRRC और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग में चलते कोर्सेज के बारे में ऑडियंस को बताया। ऑडियंस को चाहिए कि इन सारे कोर्स के बारे में जानकारी लें और अपने जान पहचान वाले बच्चों को या जिनके घर के बिजनेस हैं, जिनके घर के वीविंग या प्रोसेसिंग है, उनके घर के फैमिली मेंबर्स भी ये कोर्स करें। आज ये सुन के मुझे खुद को भी लग रहा है कि एक कोर्स जो डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोर्स मुझे खुद को भी करना चाहिए, क्योंकि एज ऐसा कुछ नहीं है, मेरी 56 एज है, पर आई कैन सीट एज ए स्टूडेंट एनीवेयर टुडे। थैंक यू सेजल बेन। अभी सीधा हम चलते हैं आज के ब्लॉकबस्टर स्पीकर के पास। तो ये हमारे स्पीकर साहब से हमें उम्मीदें काफ़ी है, क्योंकि ये इनकी जो लाइफ है, ये ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट आज 200 स्टोर है, तो वो 200 स्टोर कोई रातों रात नहीं बने हैं। ये 200 स्टोर तक पहुंचने में या इस साल के अंत तक 300 स्टोर तक इनकी संख्या पहुंच जाने वाली है। तो यहाँ तक ये रातों रात नहीं पहुंचे हैं, यहाँ तक इनकी जो जर्नी है लाइफ की, जो बिगिनिंग है। अभी हम लोग ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे तो मैंने इनको रोका कि ये बात आप वहां पे ऑडियंस के सामने करो, हमें वहां सुनने की इच्छा है। तो वो एक तरह से टेक्निकल तो बाद में है, पर मोटिवेशनल बहुत ज्यादा है कि हम लोग सोच के बैठ जाते हैं कि यार कोई खाने का खेल है 200 स्टोर, पर सही बात में खाने का खेल इन्होंने भी नहीं सोचा था। जहां तक ये पहुंचे हैं और इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो ये बिल्कुल हमारे साथ आप शेयर करेंगे तो हमें काफी लाभ होगा। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतने टेक्निकल सेमिनार्स करते हैं, इतने एग्जीबिशंस करते हैं, इतने बड़े लेवल पे हम लोग मशीनरी के एग्जीबिशंस करते हैं, और इस मशीनरी के एग्जीबिशंस के अंदर काफी इंडस्ट्री के लोग काफी नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, पर अंत में थोड़ी सी कड़वी लगेगी बात, पर अंत में इतनी हाई इन्वेस्टमेंट के बाद हम भेड़ चाल के कपड़े ही बना रहे हैं। मसलिन चल रहा है तो मसलिन बना रहे हैं, चंदेरी चल रहा है तो हम चंदेरी बना रहे हैं, पर क्या हम ऐसी ब्रांड के साथ जुड़ के इन लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए तो रेडी है कि हमें आगे के सीजन के लिए क्या चाहिए। मैं सिर्फ कल की बात आपको बता रहा हूँ। कल रात को हम 8:30 पौने 9 बजे तक बैठे थे। मैं उनको मेरी ऑफिस में डिजिटल प्रिंटिंग के सैंपल दिखा रहा था। आपको जान के हैरानी होगी कि इनका कार्यक्रम अभी जो प्रोडक्शन का चल रहा है वो 2024 अक्टूबर का माल क्या बनेगा उसका सैंपलिंग चल रहा है। 2024 का समर का टोटल प्रोडक्शन इनका कंप्लीट हो चुका है, और आज हम अक्टूबर महीने के 2023 में बैठे हैं। आप सोचो कि कितना एडवांस प्लानिंग इनका डिजाइनिंग में चलता है, कितना फैब्रिक सैंपलिंग में चलता है। तो फैब्रिक सैंपलिंग करना वीविंग स्टेज से लेके डाइंग या प्रिंटिंग स्टेज से लेके गारमेंटिंग तक के स्टेज में ये लोग एक साल एडवांस चलते हैं, और पूरा 101% इनका मैन्युफैक्चरिंग अपनी खुद की रिटेल आउटलेट में ये लोग बेचते हैं। और 1 करोड़ मीटर कोई साधारण संख्या नहीं है कपड़ा सूरत से परचेज करने की। और वो भी कल इतना फैब्रिक दिखाने के बाद, कम से कम 200 सैंपल दिखाने के बाद, इनकी एक ही फैब्रिक पर नजर गई कि हाँ ये कुछ मुझे नया लग रहा है, ये फैब्रिक का सोर्सिंग करके मुझे इसके ऊपर आने वाली अक्टूबर 2024 के लिए हम लोग सैंपलिंग करेंगे, जिसके लिए मैं खुद भी तैयार नहीं था। तो संदीप जी, इस तरह का आपका साइंस क्या है, इस तरह की आपकी टेक्निक क्या है, इस तरह की आपकी सोच कैसे डेवलप हुई, ये सब हमारे लिए मोटिवेशनल भी है, हमारे इंडस्ट्री के लाभ में भी है। तो इन सारी बातों को आपके वक्तव्य में आप शामिल करेंगे तो शायद इस कार्यक्रम की सफलता का हम आप सब लोग मिलकर श्रेय ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका तहे दिल से धन्यवाद।
धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके कुछ बोल सकूँ अपने बारे में। तो नमस्कार एवरीवन, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सूरत टेक्सटाइल पर्व एज ए गेस्ट स्पीकर। द एनर्जी एंड वाइब्रेंसी ऑफ दिस सिटी इज रियली infectious. I must say, I'm thrilled to be a part of this incredible event. चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं संदीप कपूर मेरा नाम है और मैं एक जो है आपका स्वदेशी क्लोथिंग ब्रांड श्री का CEO हूँ और अपने दिल से सूरत के साथ जुड़ा हूँ। यहाँ के धागों का ताना बाना और रंगों की दुनिया से मेरा बहुत गहरा संबंध है। 2012 में मैं पहली बार सूरत आया था, क्योंकि उससे पहले मैं अहमदाबाद और जयपुर, मेरे माइंड में यही था कि कॉटन प्योर फैब्रिक जो है या तो अहमदाबाद में प्रोसेस होते हैं या फिर जयपुर में होते हैं। तो पहली बार आया, मेरी 6 बजे की ट्रेन थी, यहाँ पे मार्केट में घूमा, कुछ अच्छा नहीं लगा मेरे को। 1-2 लोगों ने कुछ दिखाया, किसी ने साड़ी दिखाई, किसी ने गमछा दिखाया। तो 3 बजे नहीं बनाते सूरत का तो नहीं मिंटू से नहीं आप और लाइटर साइड गमछा लगा ना उनको यस सर नहीं तो 3 बजे थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं वही से डिस्कस कर रहा था, कोई मित्र थे मेरे यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि 6 बजे आपकी ट्रेन है, अभी 3 बजे है, तो चलिए मैं आपको किसी से मिला दूँ। वो यहाँ के टेक्सटाइल के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, तो समय है आपके पास। तो वो मुझे अक्षय भाई के ऑफिस ले गए, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं सूरत ये प्रॉब्लम लेके आया हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो ये सोचते रहे 1 घंटा में बोलता रहा। 1 घंटे बाद बोलते हैं आपकी 6 बजे की गाड़ी है। मैंने कहा आप उसको मिस कर सकते हो। मैंने बोला मैं काम से आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपने स्टाफ के साथ कहीं पे भेजा और मुझे 10-20 कुछ आइटम दिखाई जो कि एकदम एग्जैक्टली वो था जो मैं ढूंढ रहा था। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया है। तो उस दिन के बाद से समझ लीजिए कि मैंने शायद ही कोई महीना मिस किया होगा जब मैं सूरत नहीं आया, और 2 दिन 3 दिन के लिए इनके पास जरूर आता हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ हर बार। और यहाँ से जो मेरे को मिला है 2012 से लेकर आज तक, तो मैंने इस ब्रांड को बनाने में जो भी लगाया है वो सूरत का ही मैंने सामान लगाया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसके एवज में मैं आज कुछ सूरत के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम थ्रिल्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको श्री से थोड़ा परिचित करा देता हूँ। 2009 में ये ब्रांड शुरू किया था हमने, विमेंस एथनिक वेयर, जो एकदम स्वदेशी ब्रांड है। हमारे कपड़े, हमारे ट्रिम्स, हमारे एक्सेसरीज, एवरीथिंग इज मेड इन इंडिया। हम कुछ भी इंपोर्टेड मटेरियल यूज नहीं करते, ना कि इवन बटन तक हम कोशिश करते हैं कि इंडिया में ही बना हुआ यूज होना चाहिए। विदेशी मटेरियल कुछ भी हम यूज नहीं करते इसमें। तो 2009 में शुरुआत करने के बाद में इंडिया में आपको पता है एक नए ब्रांड के लिए इतना कोई वेलकमिंग मार्केट नहीं है। तो उस टाइम पे ये था, मैं और मेरी वाइफ थे, दोनों ने कि ब्रांड बनाना है, क्या किया जाए। तो हमें पता चला कि इंडिया से बाहर ई-कॉमर्स में माल बिकता है, तो यू कैन सेल फैशन ऑनलाइन। तो हमने eBay.com, Amazon.com में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, UK में अपने ब्रांड को बेचना शुरू किया ऑनलाइन। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, करीब 400-500 कस्टमर रोज की खरीदना शुरू हो गए। फिर उसके बाद में इंडिया में ई कॉमर्स शुरू हुआ, हम एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ में तैयार थे, तो हमें अच्छी सक्सेस मिली। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। सिंस मेरा करियर जो था वो रिटेल इंडस्ट्री से बहुत क्लोजली रिलेटेड था, और मैं सब रिटेलर्स को माल बना के देता था उससे पहले। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कशन किया कि हमें एक रिटेल की दुकान खोलनी चाहिए, जहाँ पे हमारा कस्टमर डायरेक्ट हमारे पास आएगा और हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएगा।
जब आप एक मिडलमैन के थ्रू जाते हो आपको उसका ऑनेस्ट फीडबैक कभी नहीं मिल सकता। आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या सोचता है, क्या बोलता है, अच्छा है, बुरा है, लेट अस एक्सपेरिमेंट है। और एक दुकान खुली और 7 दुकान 2016 में हमारी खुल गई। सो ये एक शुरुआत है श्री की। तो आज अगर हम बात करेंगे तो हमारे करीबन 120 प्लस इंडिया में स्टोर है, 200 नहीं है, मैं बहुत करेक्टिव, और 5 स्टोर हमारे ओवरसीज हैं जो कि यूएई में है। यूएई में 2 स्टोर और खुल रहे हैं इस साल में। सिंगापुर हम इसी महीने में खोल रहे हैं 1 स्टोर। कतर में 1 स्टोर हमारा नेक्स्ट मंथ खुल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो करीबन 25 से 30 स्टोर हमारे पाइपलाइन में है, कुछ फिट आउट में है, कुछ एरो स्टेज में है, कुछ एग्रीमेंट स्टेज में है। तो ये हमारी जर्नी है आज तक की। तो अगर मैं रिटेल ट्रेंड्स की बात करूं तो 2000 मार्केट में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री वाज 2.77 करोड़, जो कि 2020 में 4.5 लाख करोड़ की हो गई। 2021 आपको सब पता है कि होल इंडस्ट्री वाज इन डीग्रोथ। जो 2025 तक करीबन 7 लाख करोड़ की हो जाएगी। मैं अपैरल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका ग्रोथ रेट देखेंगे करीबन 22% का ग्रोथ रेट आज की डेट। इसकी तैयारी हमें करनी है, क्या हम रेडी हैं इसके लिए? मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि उसके अंदर आज की डेट में अगर मैं देखूं तो मेजर रोल प्ले जो है वीविंग का सूरत का है। पूरा हिंदुस्तान सूरत के ऊपर नजरें गड़ा के बैठा है कि ये कपड़ा तो मैं सूरत में बना लूँगा, ये वाटर जेट का है, ये एयर जेट का है, ये इसका है। आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन, बट पूरा हिंदुस्तान भारत पे नजरें गड़ा के बैठा है। उसके बाद में हमारा एक्सपोर्ट आज चाइना के बाद में अगर किसी यूरोपियन बायर से आप बात करते हो तो वो इंडिया की ही बात करता है। वो बोलता है मुझे 10% महंगा चलेगा लेकिन मुझे इंडिया से माल चाहिए। सो आर वी रेडी फॉर दिस? हमें इसके ऊपर आई थिंक सोचना पड़ेगा और इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री के लिए। सो थोड़ा मैं आपको श्री की जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। ये श्री का बीता हुआ कल है। हमने अपनी रिटेल की जर्नी 2016 में शुरू की थी। सो 2020 आते होते करीबन 115 स्टोर थे, जो कि 2022 में 101 रह गए। हमने करीबन इस जर्नी के अंदर 45 स्टोर जो है शट डाउन भी किए बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज मार्केट कंडीशन सुटेबल नहीं थी। उस रुकावट के कारण थोड़ी स्पीड स्लो हुई। लेकिन आने वाला कल क्या है, हम किसके लिए रहे? आज हमारा ये है कि हम ये जोग्राफिकल इंडियन पार्ट्स में अवेलेबल है, प्लस इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो यूएई के कुछ पार्ट्स में है। तो ये हमारा कल है जिसके लिए हमने तैयारी कर रखी है। हमारा बैकएंड, हमारी प्लानिंग, हमारी डिजाइनिंग, हमारी थॉट, क्या कपड़े चलने वाले हैं आगे, कितने क्या ब्रांड चल रहे हैं, कस्टमर किस चीज़ को पसंद कर रहा है, किसको ना पसंद कर रहा है, कैसे डिज़ाइन आ रहे हैं, क्या फोरकास्टिंग हो रही है। हम लोग उसके लिए WGSN को फॉलो करते हैं। हम उसके लिए फॉरेन के ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, डिज़ाइनर्स को फॉलो करते हैं कि किस तरह के फील फॉल वाले कपड़े आगे चलेंगे। बेस्ड ऑन दैट हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। हमें 6 महीने पहले इसलिए प्लानिंग करनी पड़ती है क्योंकि एकदम से रेंज पूरी, आपको सीज़न चेंज होता है तो आपको पूरी दुकान का, पूरी चेन का पूरा मर्चेंडाइज चेंज करना पड़ता है। तो एकदम से पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि कुछ लिमिटेशन है हमारी इंडस्ट्री में, जो कि कहीं जाके हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी पावर प्रॉब्लम, कभी कुछ हो जाके, इसलिए हमें 6 महीने पहले अपना फैब्रिक प्रिक्योर करना पड़ता है, अपनी डिज़ाइनिंग को सिक्योर करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्शन को लाइन में डालना पड़ता है, ताकि जैसे ही सीज़न बदले हम अपनी दुकानों का
पूरा मर्चेंडाइज जो है चेंज ओवर कर सकें। सो हमारे प्लानिंग के हिसाब से हम श्री को 2027 में देख रहे हैं करीबन 960 स्टोर है, जिसमें 880 स्टोर इंडिया में होंगे और 80 स्टोर इंटरनेशनल मार्केट्स में होंगे। जिसकी टेरिटरीज में आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे साउथ इंडिया में हम लोग इस साल शुरुआत कर रहे हैं। वेस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, जीसीसी कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया है, आपके एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका एंड केनिया। So these are the targeted markets for next 5 years what we are focusing right now, and we have already placed our products and which are well accepted। और उसके अंदर 95% कंट्रीब्यूशन जो है आपका सूरत का है। मैं घर से ये बोल रहा हूँ कि हमारे सूरत के कपड़े बहुत अच्छे बिक रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी रेशो में हम सूरत के साथ में भी हमारा व्यापार चलता रहेगा। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का जो मेरे को एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक तो हमारी इंडस्ट्री बहुत क्रिएटिव है। आप किसी को 4 आइडिया दोगे, वो आगे से 10 आइडिया के आपको सैंपल बना के देगा। तो दिस इज द वेरी वेरी गुड और एक सबसे बड़ी चीज़ और है, थोड़ी इमोशन भी डालते हैं, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सूरत। एवरीबडी इज कनेक्टेड यू विद होल हार्ट एंड सोल। यहाँ पे खाली व्यापार नहीं है। मैं और भी मंडियों में जाता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो हम प्योरली व्यापार करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इमोशन भी साथ में यूज़ करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में और निखार आए। तो थैंक यू वेरी मच सूरत, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। होपफुली वी आर वेरी होपफुल फ्रॉम सूरत कि जैसे हमें जो क्रिएटिविटी, जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यहाँ पे मिल रही है, आज तक मिली है, वो आगे भी मिलती रहेगी, सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। तो ये कुछ कैटेगरिकली नंबर है जो कि आपको मे बी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि हम जब कपड़ा बनाते हैं तो एक माइंड में एक प्रोडक्ट को, एंड यूज को माइंड में लेकर चलते हैं कि भाई इसका ट्राउज़र बन सकता है, इसका शर्ट बन सकता है, इसकी साड़ी बनेगी, इसका कुर्ता बनेगा। तो अगर ये थोड़ा सा आपको एक इंडिकेटर है कि आपको किस तरह के कपड़े, क्या इंडस्ट्री किस रेट ऑफ ग्रोथ से आगे चल रही है। वी हैव टू कीप इन माइंड सो दैट विल बी प्रिपेयर्ड वेल। तो पैरल रिटेल की अगर बात करें तो मैं ऑर्गेनाइज रिटेल की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज। तो 2015 में करीबन 19% जो था शेयर था ऑर्गेनाइज रिटेल का। ऑर्गेनाइज रिटेल में उसको मानता हूँ जो कि प्री प्लान, अपने सीजन की प्लानिंग के हिसाब से, अपने 2 सीजन के हिसाब से अपना प्रिक्योरमेंट करके चलता है, प्लान करके चलता है, जिसके 2025 में करीबन 42% का कंट्रीब्यूशन होगा, विच इज रिमार्केबल। इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों को भी एक दिशा मिलेगी, क्या बनाना है, किस तरह के कपड़े बनाने हैं, किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपडेटेड रहेंगे। जैसे हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं तो हम अपना मूड बोर्ड शेयर करते हैं कि भाई हमने समर 23 के लिए, 24 के लिए ये सोचा है। इस मूड बोर्ड को माइंड में रखते हुए आप अपनी डेवलपमेंट कीजिए, या आपके पास कुछ इसका सिमिलर है तो वो हमें हमारे कलर पैलेट में बना के दीजिए, तो काम और आसान हो जाता है। आपको भी प्लानिंग मिल गया कि मेरा 10 लाख मीटर कपड़ा ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी एफर्ट्स कितनी बचेंगे, और आगे आप और भी क्रिएशन में ध्यान दे सकते हो, अपनी प्रोडक्शन में ध्यान दे सकते हो। देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर यू कैन आल्सो प्लान योरसेल्फ। तो अगर हम देखें तो आगे जो फ्यूचर है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज फैक्टर्स इन आवर ग्रोथ। ज़्यादा प्रोडक्शन, कम प्रदूषण के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड का ध्यान रखें, रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन, मेंटेनेंस, रीयूज, रिफर्बिश,
remanufacturing, recycling and compost. So these are the futuristic ideas which we have to get aligned with, otherwise हम नंबर 1 नहीं बन पाएंगे। ये सब फैक्टर्स जो है हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसका भी पालन करना है, ताकि हम अपनी एनवायरनमेंट को भी सेफ कर सके और इंडस्ट्री के हमारे जो प्रोडक्शन के जो नॉर्म्स है उसको भी कंप्लाई कर सके। तो ये कुछ जो मेरे को समझ में आया, जो मैंने यहाँ से पाया, ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं जो हमारे सूरत की हैं। एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, नई टेक्नोलॉजी आई, इमीडिएटली स्विच ओवर, इमीडिएटली they are willing to adapt the newness, they are willing to adapt the new technology. Diversified product range, ट्रेडिशनल साड़ीज है, यहाँ पे ड्रेस मटेरियल बनता है, एम्ब्रॉयडरी यहाँ होती है, सिल्क फैब्रिक्स यहाँ बनते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक यहाँ बनते हैं, डेनिम्स यहाँ बनते हैं, इवन निटेड फैब्रिक यहाँ बनते हैं, पाइल फैब्रिक्स बनते हैं, यू नेम इट, दिस सिटी हैज इट। तो जितना बड़ा पोर्टफोलियो इस सिटी का है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कोई ऐसा सिटी नहीं होगा जहाँ पे इतनी बड़ी आपको रेंज मिल जाएगी अंडर वन सिटी। दैट्स रिमार्केबल। आई थिंक we need a round of applause. So processing of all kind of fabric, all technology of printing, चाहे वो रोटरी है या फ्लैट बेड है या डिजिटल है या वैल्यू एडिशन है या टेबल है, everything we have under one roof, everything. यहाँ पे वाटर जेट भी हैं, एयर जेट भी हैं, जैकार्ड भी हैं, डॉबीज भी हैं। I think this city has everything which is available related to the textile machinery in the world, और करने की इच्छा भी है, लोग people are willing, they are doing, और एक एनर्जी, एक उत्साह, एक करने की इच्छा, बहुत कुछ है यहाँ पे। So I think we have to be number 1 in the world. Let us make it, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वर्ल्ड फैक्ट्री। दिस इज अ ट्रू सिटी ऑफ हैप्पीनेस। जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपने कस्टमर को कपड़े नहीं बेचता हूँ, मैं उसको खुशियाँ बेचता हूँ। वेरी गुड। आई सेल हैप्पीनेस टू माय कस्टमर। सो दिस सिटी मेक्स हैप्पीनेस फॉर अस टू डिलीवर टू आवर कस्टमर्स। दैट्स द So I would like to thank lot of people here, but can't name everyone. जैसे अक्षय भाई है, he has really supported me like anything. जहाँ पे भी मुझे लगा कि अक्षय भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये मैं अटक रहा हूँ, he gave me a solution. और उसके बाद में संजय भाई है, आज नहीं है यहाँ पे, मीटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। श्री भाई हैं, उनके साथ बहुत अच्छा, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत कभी ना सुना नहीं उनके मुँह से, एवरीथिंग इज पॉसिबल। छोटू भाई है यहाँ पे, विराज में, वेरी क्रिएटिव, वेरी थॉटफुल, उनको मालूम है क्या चलना है क्या नहीं चलना, तो एक नज़र में सब कुछ बता देते। तो आई एम रियली रियली टच्ड बाय दीज पीपल। इन लोगों से जो मैंने पाया, जो सीखा है, I'm really thankful to them. So, जैसे आप बोल रहे थे, I think विजय भाई बोल रहे थे, हमारा स्ट्रेटेजिक रोड मैप क्या होना चाहिए? जो मेरे को समझ में आया एज ए लीमैन, मैं कोई आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन, तो हमें मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, क्या कैसे क्या होने वाला है, व्हाट आर द फोरकास्टिंग। वो मेरे ख्याल से जितने ही हम ऑर्गेनाइज होते जाएंगे, हमें वो स्टडी करना पड़ेगा,
नहीं तो ताकि हम गलत नहीं जाए किसी दिशा में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ऑफ एडॉप्शन, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, स्किल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इनोवेशन एंड रिसर्च, marketing and branding, regulatory framework, quality controls, and local employment. So that's what I can think upon. इसके ऊपर आप लोग सब लोग एक्सपर्ट हो, आई थिंक आप लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मैं तो एक रिटेलर हूँ, मैं तो एक आउटसाइडर की तरह आपको कह रहा हूँ। बाकी आई थिंक दैट्स इट व्हाट आई वांट टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। संदीप जी, सूरत से जो आपने पाया है आज आपने काफी कुछ लौटाया भी है अपने ज्ञान के रूप में। नहीं, बिल्कुल एक चेतना जरूर जगाई है लोगों के अंदर कि समझो 2023 चल रहा है, उसका सेल्स भी देखना है, 2024 अगले साल में क्या बेचना है उसका प्लानिंग भी करना है, और 2027 तक का रोड मैप भी बनाया है कि 2027 में हम 960 स्टोर्स पे रहेंगे। और फिगर्स तो शेयर करना अच्छा नहीं लगा होगा इनको कि इतने टर्नओवर पे हम जाएंगे, ये फैब्रिक में जाएंगे, ये भी फोरकास्ट नहीं कर सकते, परंतु इतने स्टोर्स में जाना है, ये एक ड्रीम को अपने मस्तिष्क में उन्होंने संजो के रखा हुआ है। क्या हमारे बीच में ऐसे उत्पादक हैं जो अगले मार्च महीने में क्या फैब्रिक बनाना है उसकी प्लानिंग लेके बैठा है? शायद इस सवाल का जवाब ना होगा। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी के मशीन लगा के बैठे हैं, परंतु फैशन फोरकास्टिंग के माध्यम से, फैब्रिक फोरकास्टिंग के ऊपर हम इतना काम नहीं करते हैं। सिर्फ क्या चलता है वो देख रहे हैं, क्या चलाना है वो हम शायद भूल रहे हैं। तो आज हमें एक संदीप जी से एक मोटिवेशन जरूर मिला है कि क्या चलता है वो तो ठीक है, पर आगे की सीजनों के लिए क्या चलाना है उसके बारे में भी रिसर्च करें, रिसोर्सेज डेवलप करें, सलाह लें, एक्सपर्ट्स को मिलें, जीएफआरआरसी का संपर्क करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, तो शायद ये सूरत नंबर 1 पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं फेस करेगा। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी और बहुत जबरदस्त स्टैटिस्टिक्स के साथ में संदीप जी ने अपने श्री ब्रांड को हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए मैं सबको एक बार फिर तालियों की गूंज से इनको स्वागत करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। ये भी एक बहुत अच्छी बात कही कि हम एक सिंपल बटन भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, एक तो ये एक वोकल फॉर लोकल हो गया, स्वदेशी पूर्ण रूप से स्वदेशी हो गए। तो ये वोकल फॉर लोकल का अभी हम दूसरा लेते हैं कि हमारे बीच में एक लोकल एंटरप्रेन्योर, एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है जो गिरधर गोपाल मुंद्रा जी के सन दीपक मुंद्रा जी, इनके कजिन, तो इनके परिवार के सदस्य हैं जो आज हमारे बीच में हैं। तो हमारी ये लोकल इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, कहाँ जानी चाहिए, और क्या इनके आज के कार्यक्रम के अनुरूप अपने विचार हैं वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, उनके लिए मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। श्री दीपक भाई मुंद्रा जी। गुड इवनिंग, नमस्ते, थैंक यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, थैंक यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपने मौका दिया मेरे को यहाँ बुलाकर, और स्पेशल थैंक यू टू गिरधर चाचा जी जो आज बोला कि संदीप जी आ रहे हैं और ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर, उनको सुनना भी है और तुम्हारे को 5 मिनट बोलना भी है। तो मेरे संदीप जी के विचार सुने पूरे, तो उसमें कुछ मेरे भी विचार में ऐड करना चाहूँ। सूरत की इंडस्ट्री की, जैसे बखारिया साहब ने कहा, संदीप जी ने एक बहुत अच्छा फिगर दिया, 2027 तक 7 लाख करोड़ पे इंडस्ट्री पहुंची, तो अभी 4 लाख करोड़ पे है, तो 3 लाख करोड़ का से 4 लाख करोड़ का ग्रोथ, तो सूरत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये मैक्सिमम शेयर कवर करने के लिए, ये अपैरल इंडस्ट्री की मैक्सिमम शेयर कवर करने के लिए सूरत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सूरत में मेजर चीज देखा जाए तो ज़्यादातर हम जो ह्यूमन बॉडी को लगता है फैब्रिक, ज़्यादातर उस पर ज़्यादा काम हो रहा है,
लेकिन फैब्रिक की दुनिया देखी जाए तो बहुत बड़ी है। जैसे कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे फैब्रिक की दुनिया में जियो टेक्सटाइल्स है, डिफेंस के फैब्रिक्स है, फर्निशिंग है, कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल्स भी बन रहे हैं, शूज और पर्सेस के टेक्सटाइल्स भी बन रहे हैं, होम अप्लायंसेस के टेक्सटाइल बन रहे हैं, दीवारों पे भी कपड़ा लग रहा है, सीलिंग्स पे भी कपड़ा लग रहा है अभी। तो यहाँ भी सब अगर डेवलपमेंट करें तो जो हम नंबर 1 और नंबर 2 के गैप में है, तो वो गैप को भी बहुत कवर करके नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं अगर ये बाकी इंडस्ट्री पे भी हम ध्यान दें। और कई जगह मैंने देखा है छोटे छोटे रूप में इसका काम हो रहा है। जैसे आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो विस्कोस पहले सादे मशीन पे बनता था, तो विस्कोस की इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई, अभी एयरजेट पे आने लग गया। पहले बनता था बिना मूंछ वाला कपड़ा, मूंछ वाला भी बनने लग गया कपड़ा, तो एक्सेप्टेंस होता जा रहा है और डिफेक्टलेस फैब्रिक बनता जा रहा है। तो मशीनें जिस हिसाब से आती जा रही है उस हिसाब से कपड़े भी नए नए इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। लेकिन भेड़ चाल चलने से अच्छा है कि हम नया नया अपना खुद का एक सेगमेंट पकड़ के वो चीज नई चीज डेवलप कर सकते हैं। एपरेल्स पे मैं बात करूँ तो एपरेल्स में दो बहुत बड़े बड़े एपरेल्स के सेगमेंट होते हैं। एक तो सब लोग स्ट्रेच फैब्रिक मांगते हैं कि लाइक्रा वाला सबको फैब्रिक चाहिए, और दूसरा है कोविड ने हमको सिखाया है कि लोगों की जूम की मीटिंग होती थी तो नीचे बरमुडा पहनते थे, ऊपर शर्ट और टाई पहन के करते थे। तो कोविड के बाद पूरा ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग लीजर वेयर में ज़्यादा है, रिलैक्स वेयर कैसे रहे। तो हर जगह लाइक्रा या स्ट्रेच का आया है। चाइना में एकदम कॉमन हो गया है कि हर जगह वो लोग लाइक्रा के जगह स्ट्रेच यूज करने लग गए, और हम लोग खुद इस सेगमेंट को पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप कुछ महीनों में सूरत में स्ट्रेच फैब्रिक्स को अच्छे तरीके से देख पाएंगे, जो कि गारमेंट में बहुत अच्छे से एप्लीकेशन देगा। और सूरत एक टेक्सटाइल का बहुत बड़ा महासागर है, जो जितना निकाल सकता है उतना नया डेवलपमेंट करके पूरे वर्ल्ड को दे सकता है। आज पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, जैसे वो सेटल होंगे वहाँ सूरत का कपड़ा तो जाएगा ही जाएगा। जहाँ जहाँ सेटलमेंट होते जाएंगे, आज अमेरिका में आप देखो तो अमेरिका का टोटल इंपोर्ट 24% लेस है पिछले साल, और इंडिया का 17% एक्सपोर्ट अमेरिका में लेस है। तो कुछ ना कुछ मार्केट चाइना का इंडिया में शिफ्ट हुआ है। इंडिया की हम 140 करोड़ पॉपुलेशन को फीड कर पाए, और जहां जहां वर्ल्ड में चाइना से लोग खफा हैं और इंडिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, तो वो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। तो सूरत के लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है। जैसा संदीप जी ने बताया 2027 का प्लान है, तो हम 2027 पे आसानी से पहुंच जाएंगे। और रोड मैप की बात है कि हमारे नेक्स्ट फैब्रिक्स क्या आने वाले हैं, तो अपनी अपनी फील्ड में बहुत क्लोजली वॉच करें ना, तो हमको अपने आप सेंस आता जाएगा पहले 3 महीने का, फिर नेक्स्ट 6 महीने का हमको किस लेवल पे आगे बढ़ना चाहिए। सूरत इंडस्ट्री एक दूसरे को देख के करेगी तो मार्जिन्स भी बहुत कम मिलेंगे, और हर बार इस प्रेशर में रहेगा मार्केट अप है कि मार्केट डाउन है। अभी आते से मैंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा अंकल जी से, उन्होंने बोला, मैंने पूछा मार्केट कैसा है अंकल, तो बोले कौन से सेगमेंट का मार्केट जानना है, कौन से सेगमेंट का मार्केट जानना अच्छा है। मैं कहा आप अपैरल का बताओ, बोले एक्सेलेंट। तो सेगमेंट वाइज मार्केट हो गया, ओवरऑल नहीं रहा। हम अपने अपने सेगमेंट पकड़ को आगे बढ़ते जाएंगे तो द फ्यूचर इज रियली रियली वेरी गुड, और हम नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चेंबर ऑफ कॉमर्स। धन्यवाद दीपक भाई। आपने नॉन अपैरल सेक्टर के टेक्सटाइल्स के बारे में जो लोगों के अंदर जागृति लाने की कोशिश की, और आपने प्योर बिजनेस के बारे में डिस्कस किया कि भाई ये हिसाब से ही बिजनेस होता है। तो दीपक भाई थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत छोटे वक्तव्य में काफ़ी कुछ कह गए, इसलिए ऑडियंस की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। हमारे बीच में लुथरा ग्रुप के चेयरमैन श्री गिरीश भाई लुथरा हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। इनका भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। मेरे ख्याल से अभी इनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उतना ही संबंध है जितना उन्होंने कपड़े पहने हैं।
हमारी मित्रता है, एकदम निजी घरेलू मित्रता है, हम ऐसी छूट ले सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस मीटिंग में आपने जो मिस किया, वो जो आपके बाजू में बैठे हैं मुंद्रा जी, और मुंद्रा जी के बाजू में बैठे हैं संदीप कपूर साहब, गिरीश भाई, श्री रिटेल्स LLP करके जो है, ये इनकी ब्रांड है, और ही इज रनिंग 120 रिटेल आउटलेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड 5 रिटेल आउटलेट्स इन UAE। और इन्होंने 2027 तक का एक रोड मैप शेयर किया, और सूरत से ये 1 करोड़ मीटर कपड़ा एनुअली परचेज करते हैं। तो ये हमारे ग्राहक भी है। तो अभी आप आए हो, आपका वक्तव्य सुनने के लिए मैं काफी टाइम से बेकरार था, तो प्लीज ओवर टू गिरीश भाई। इससे पहले कि हम उनको सीधा माइक पे ले जाएं, हम भरत भाई और गिरधर गोपाल मुंद्रा जी, श्री भरत भाई गांधी मुंद्रा जी, और महेंद्र भाई काजीवाला, प्रफुल्ल भाई शाह, आप इनको फेलिसिटेट करें। थैंक यू वेरी मच। काफी व्यस्त दिवस के बीच में आज आप गिरीश भाई हमारे बीच में पधारे हैं। इनका नाम बहुत सुना है, कि मिलकर बहुत काम करवाए। ऑलराइट, परिमल तेरी परमिशन हो तो मैं तो ओवर टू गिरीश भाई लुथरा। थोड़ा बहुत बोल कर लूं सबको। अनिवार्य 3-4-5 सेशन हो गए मंडे से लेके आज तक, राइट? उस दिन 2 सेशन हुए, आज 2 हो गए। तो क्या क्या सब्जेक्ट डिस्कस हुआ? बिजनेस अच्छा है, मार्केट पोटेंशियल भी अच्छा है, राइट? यहाँ ज्यादा वीवर दिख रहे हैं मेरे को, जो समझ में आ रहा है। तो मैं इन सब बातों पे आ बधी बात पर આપણે વાત નથી કરવી, સિમ્પલ, કારણ કે બધાને ખબર છે જે સુરતની આવડત છે, ધ કેપેબિલિટી ઓફ સુરત, એને એનહાન્સ કેવી રીતે કરવાનું, આપણે એના ઉપર એટીટ્યુડની વાત કરીએ, નોટ ઓન ધ સબ્जेक्ट ऑफ टेक्सटाइल। हालांकि टेक्सटाइल से मैं पूरे ताके की तरह ही जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना अभी भी 40 मिलों को कंट्रोल मैनेज करना है। लेकिन एनीवे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो लाइटर में था। अभी मुद्दा ये है कि हम जो सोचते हैं, हम एक्सपर्ट किस बात के हैं सूरत के? चलो मुझे कुछ बताएं। यहाँ पर कुछ पुराने लोग हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं। हम सूरत में किस बात के एक्सपर्ट? कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं, परफेक्टली राइटली सेड। और मेरा आज का सब्जेक्ट है कॉपी लाइक एन आर्टिस्ट, कॉपी लाइक एन आर्टिस्ट, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। चोरी करो आर्टिस्ट की। कहने को कॉन्सेप्ट क्रूड लगता है, तो चोरी भी करो और आर्टिस्ट भी करो। और वैसे सोचो तो आप लोग सब, हम लोग सब, से आप लोग सब, हम सब करते आए हैं। और सूरत को हमने 1 से 500 होते देखा। भरत भाई, वी ऑल हैव डन दैट। कुछ ना कुछ हम प्रिंट करते थे, सिल्क की साड़ी ले आते थे, कॉपी कर लेते थे, एम्ब्रॉयडरी ले आते थे, लखनऊ से कॉपी कर लेते थे। लेकिन That is not called copy. I would say inspired by Lucknow. राइट, मैं अभी ऐसा है, वो मार्केटिंग का एक नोमेनक्लेचर है जो चेंज हुआ। इट्स अनदर कॉपी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वर्ड इंस्पायर्ड इंस्टेड ऑफ कॉपी वाज आल्सो अ कॉपी। 400 साल से ओरिजिनल ड्रामा अगर शेक्सपियर ने 400 साल पहले लिखा तो उसकी कितनी कॉपीज हो गई? इंडिया में कॉमेडी ऑफ एरर्स की कॉपी बनी, तो वो बनी अपनी संजीव कुमार देवन वर्मा बनी, कैसी मूवी? अंगूर एन नंबर। ओथेलो नहीं बनी। फर्क क्या था? वाई अंगूर वाज लाइक
it was not a 100% copy. It was actually inspired. But उसको इसलिए बोलते हैं कि steal like an artist. So I start with the definition कि good copy, bad copy में क्या फर्क है? बताइए। आज हम बात कम करेंगे, सुनेंगे ज्यादा, सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। A good theft and a bad theft, चोरी है ना, और ये चोरी में कोई गुनाह नहीं है। अच्छी चोरी करोगे, you will feel honored कि मैंने कोई प्रोडक्ट ऐसा क्रिएट किया तो चोरी। और अगर नॉर्मल चोरी किया और डिग्रेडेड फील करोगे, मैं तो नहीं कॉपी कर। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड। अच्छी चोरी के लिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है, और बैड चोरी के लिए कुछ नहीं करना है, जो है उसको ले लेना। 70% यूरोपियन प्लांट्स इंडिया में फेल हुए बिकॉज दे वर कॉपी। जब नॉट ओनली टेक्सटाइल, आई एम टॉकिंग अक्रॉस द बोर्ड। अभी मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स में हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने उसको इंडिजिनाइज थोड़ा बहुत किया तो वो सक्सेसफुल हो, बिकॉज उसने लोकल टच, लोकल लिमिटेशंस को कंसीडर किया। एक अच्छा चोर जो है ना, वो मल्टीपल लोगों से चोरी करता है। पुअर चोर जो होता है वो एक से चोरी। આ છે ને અંદરથી લાગશે કે શું વાત કરી રહ્યો છું, હકીકત એ છે કે ચોરીનો પણ એક આર્ટ હોય। આપણે સિલ્કનું કોપી કર્યું, આના પર કે પહેલા કોટનનું લીધું, આપણામાંથી કોટને કર્યું। ધીસ ઇઝ ઓલ નોર્મલ ઇફ આઈ પ્રિન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ। अच्छी चोरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, बुरी चोरी होगी तो अच्छी चोरी होगी तो आप ट्रांसफॉर्म कर देते हो मार्केट को। अब ये आप बोलिए कि मैंने क्रेप बनाई थी पॉलिएस्टर में, वो शुरू कहां से हुई थी? नायलॉन क्रेप से, दानी शिफॉन। वो कहां से शुरू हुआ? सिल्क क्रेप से, बीच में विस्कोस भी आ गया। राइट, व्हाट हैव वी डन? इज इट अ प्योर ओरिजिनल इनोवेशन और R&D? नो। और आप और हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, हम प्योर R&D एफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए when we say that steal like an artist, तो चोरी करो, ढंग से करो, करने में कोई बुराई नहीं। आपने ત્યાં બધા એક જ વાત કરે, આ તો કોપી કેટ છે। હવે કોપી કેટ પણ સારી ક્વોલિટીનો હોઈ શકે। હમણાં શું થયું કે પેલા આવ્યો છોકરો એક્ઝામમાંથી ભણીને ને બહુ માર પડી, બોલે હું થયું એક્ઝામમાં? કહે એક જ પેજ લખાયો। એટલે હું શું કરું, મારા આગળવાળાને એક જ પેજ આપતો, મેં પણ એક જ લખતો। સવાલ એ નથી કે આગળવાળાને એક આવતો હતો તો બાજુવાળામાં બે પેજ જોઈ લેતે। आइडिया क्या है? म्यूजिक पे हम बोलते हैं कॉपी किया, आशा भोसले का गाना, R.D. बर्मन का गाना, और जो स्मार्ट कॉपी करता है वो बोलता है मैंने रीमिक्स बनाया। आजकल की जनरेशन रीमिक्स खरीद लेती है सेम गाना, और अगर मैं वो आशा की ओरिजिनल आवाज में दूंगा तो नहीं सुनेंगे। सो व्हाट ही हैज डन, ही इज रीमिक्स द सॉन्ग टू टुडेज ट्यून, एक्सेप्टेबल, द ओनली लिरिक्स आर कॉपी। सो एक ही चीज को मैंने 3 सोर्स से मिक्स करके काम किया। तो ये तो खाली एक इंट्रोडक्टरी नोट के लिए मैंने अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, तो मैंने सोचा कि थोड़ा शेयर करता हूँ, क्योंकि सूरत की पूरी ग्रोथ का बेस ये रहा, और उसको हम बोलने में और डिस्कस करने में सेमिनार में कतराते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ गलत बात कर रहे हैं, एक्चुअली नहीं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप लोग सब डिजाइन बनाते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी में बनाते होंगे, कुछ वीविंग में डिजाइन बनाते, करेक्ट है? क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? कहिए।
ક્યાંથી આવે You have to see something. સી વોટ એક સેટ ઓફ પીપલ વધારે કરીને આપણે શું કરીએ કે એક डिजाइन स्टाइल में भी मैं टर्की गया और मैंने टर्की का एक क्लासिकल ओल्ड डिजाइन देखा एंड आई क्रिएटेड आउट ऑफ इट इंस्पायर्ड मेड अ हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मैं हार्डवेयर की दुकान पे डिजाइन ढूंढ सकता हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मैं फर्नीचर की दुकान में कपड़े का डिजाइन ढूंढ सकता तो मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि थोड़े ज्यादा क्वालिफाइड चोर बने क्रिएटिव माइंड कैन बेस्ट वर्क कि जब आप उस पे काम कर रहे हैं कपड़े पे आने के बाद कोई बोरिंग काम है जैसे कपड़े प्रेस कर रहे हैं बोरिंग है लेकिन उस वक्त जो माइंड फोकस होता है ना वो बोरिंग काम में तो ध्यान नहीं है तो माइंड क्रिएटिव चलता है और जब वो क्रिएटिव चलता है तो रिजल्ट सारे डॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं जो मैं अधूरा छोड़ा प्रॉब्लम और द आई वुड से प्रॉब्लम द चैलेंज इन इंडस्ट्री टुडे पहले आता सर्वाइवल हम बोलते हैं यार क्या करें 8 आने का धंधा है कैसे चलेगा स्पेशली अपने सूरत में सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं तो अभी हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे कि हम एक दूसरे की कॉपी करेंगे लेकिन आर्टिस्ट की उसने स्ट्रोक यूं मारा मैंने यूं मारा देयर इज नथिंग रॉन्ग आई हैव कॉपीड विद अ थॉट जो भी मैं बोल रहा हूं जब रात को बैठ के सोचना कि इसके ऊपर मैं कल से क्या कर सकता हूं क्योंकि ये इतना इजी नहीं है सिंपल बोल दिया कि यार वो वेब का एक डॉबी डिजाइन था मैंने वो डॉबी डिजाइन को उठा लिया या इन्होंने 10 डिजाइन मांगे तो मैंने उसी लाइन पे 12वां डिजाइन बना दिया नहीं है क्रिएटिविटी अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आज एक प्रॉब्लम नहीं रहा एक टाइम था कि वो एक जैकार्ड बनाने के लिए मेरे को वो 700,000 पट्टियां होल वाली क्रिएट करके लकड़ी में बनानी पड़ती आई changed it to cardboard punching on machines and now we are on computers similar on digital thing what has happened the transformation is technology now technology has become the least important part for quality and marketability सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज अब टेक्नोलॉजी बची है और हमारे सब सेमिनार में टेक्नोलॉजी के सिवा कोई डिस्कशन नहीं आपको मैं वाटर जेट की खूबियां बताऊं को ऐसा समझने का है तो है पुराना हो गया आज मैं किसी भी वाटर जेट लूम को ले लेता हूं एक स्टैंडर्ड की उसमें वो भाई बहन है किसी में ये 20 आइटम में से 2 आइटम वीक है किसी में दो आइटम वीक है ओवरऑल टेक्नोलॉजी इज एक्सेप्टेड इट इज लाइक फोटोग्राफी एज एन आर्टिस्ट आप फोटोग्राफी करते थे एक हर तरह की कंट्रोल आना चाहिए आज क्या है टेक्नोलॉजी टू कैमरा इज सो गुड ऑल यू नीड टू लर्न इज मुझे खाली क्या देखना मेरा फ्रेमिंग ठीक है और पर्सपेक्टिव ठीक बाकी सब वो संभाल लेगा सिमिलरली कपड़े में हो और कपड़े के बिजनेस में टेक्नोलॉजी इज लीस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन क्रिएटिविटी इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स डिजाइनिंग कंप्यूटर डिजाइन का कॉन्सेप्ट शुरू करने में हेल्प कर सकता है अल्टीमेट उसका जो टच है मैनुअल वो आपको देके फिर कंप्यूटर दोबारा काम कर सकता है वो गधा है डोंकी तो हम उसकी मास्टरी कितनी कर रहे हैं सो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बिकम अ बेटर स्टील थीफ अच्छे चोर ज्यादा अच्छे बनने चाहिए अल्टीमेटली है नथिंग रॉन्ग सूरत में एक बार बात हो रही थी कि सूरत की यूनिकनेस क्या है खाने पीने का लारी राइट सारे के सारे हम लोग सब जाते हैं ना लारी पे खाने सूरती है बाय कल्चर तो आई वाज सजेस्टिंग दैट सूरत में क्यों नहीं 5 किलोमीटर की जो अगली रोड बना उसमें एक लारी का ही रोड बना दो
तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसी कैसे हो सकता है, उस चक्कर में बाद में लारी तो लगती है सर्विस लेन में, सर्विस लेन में लारियां लगती हैं, ट्रैफिक जैम्स होते हैं, राइट। रिस्क टू, बच्चों के साथ खाना खाने आते हैं, उसको रिस्क भी देते हैं हमको। अगर मैं पहले दिन से मेरी चोरी का थोड़ा सा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मारे तो अल्टीमेटली परफेक्शन जो है उनके लोकल कल्चर ने मैच करवाना। એવી રીતે આપણે અહીંયા વિચારીએ, આજે તમે જાઓ છો કે ચાઇનાથી મેં વોટર જેટ લોન લીધી, તો સુડોકોમાંની કે પેલો કોઈ પણ યુરોપિયનની કોપી હતી, એણે કોપી કરી તમે લીધી ને, આપણે લીધી ને બધાએ, આપણે બધા ચલાવીએ છીએ। પેલી 50 લાખ રૂપિયાની એમ્બ્રોઇડરી મશીન અમે 7 લાખમાં લઈને આવ્યા, પેલી સ્વિસ હતી। હવે સ્વિસ से પણ જે ઓરિજિનલ બનાવેલું એમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં જેના 4 કોમ્પિટિટરે કોપી કરી, એને કે ખોટું કરેલું નહીં કરેલું, એટલે મનમાંથી આ વેમ કાઢી દેવાનું કે આપણે ખોટું તો નથી કર્યું, પણ હવે થોડું આર્ટિસ્ટ તરીકે આપણે આને અપનાવીએ, આ ટેકનિકને, ક્રિએટિવિટી કઈ રીતે વધારવી, એમાં તમારે આઉટ ઓફ બોક્સ કઈ રીતે જવું। કદાચ આપણે ચેમ્બરમાં એકાદો પ્રોગ્રામ એના પર કરશું, હાઉ ડુ યુ ઇમ્પ્રૂવ ક્રિએટિવિટી। નો મોર ટેक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सप्लायर आपको इतनी सब रामायण पढ़ा के जाएगा कि इसकी मशीन में ये खराब, इसकी मशीन में ये खराब, वो आके मेरा बोल के जाएगा, आपकी नॉलेज तो बढ़ी जाएगी और उसी तरह से आप करते हैं। दूसरा जो एटीट्यूडनल चेंज की मैं बात कर, एक तो ये तो चला लाइटर सब्जेक्ट को मैंने थोड़ा चुना कि थोड़ी बात ऐसे करें कि हम जो कर रहे हैं उसको और कैसे इंप्रूव करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता एटीट्यूडनल चेंज, मैं जो चीज मैं चाहता हूं मैं इसी रास्ते पे चलता रहूं, तो मैं यहां से बड़ौदा ही पहुंचने वाला। अगर वो रास्ते को मैं 2 डिग्री बदलता हूं तो मैं इंदौर पहुंचता हूं, यहाँ 2 डिग्री बदलता हूं। 9 out of 10 people, 99 और 100 people in this world have a habit कि मैं उसी रास्ते पे चलता हूं बिकॉज मुझे कन्वीनियंस है और वो रिजल्ट अलग एक्सपेक्ट कर, और उसका एक रीजन है कि वो अपने खुद के फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं करते। So that is another attitude change that हमारे को चाहिए। What I am very happy today कि आज मेरे को 20-30% है ना यंग लड़के दिख रहे हैं। नहीं तो हमारे को सूरत सिटी में ये भी प्रॉब्लम था कि वो यंगस्टर को यहाँ तक नहीं आने देते, तो बेसी जा करना नहीं आवड़। You can bring change. Why? You can think without past head, without past मिजरीज, फेलियर्स, तो सबको छोड़ दो, तो आप चेंज सोचोगे। अभी आपको हम सब क्या करते हैं क्रिएटिविटी में, हमें लगता है हमने 2 डिजाइन 2 कलर बना दिए, हम बड़े अच्छे क्रिएटिव हो गए। हम लोगों ने टेक्सटाइल धंधा हैप्पीनेस का है, टेक्सटाइल धंधा हैप्पीनेस का है। मैंने एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बन गया तो मैं बड़ा खुश हो गया, इन्होंने ऑर्डर दे दिया, मैं बड़ा खुश हो गया, डिलीवरी पहुंच गई, खुश हो गया, 3 महीने बाद 20% माल वापस आ गया, लेकिन 80% पैसा એવું થાય છે તમારામાંથી તો નહીં પણ ટ્રેડિંગમાં વધારે થાય। मैं बड़ा खुश हो गया कि 80% पैसा आ गया, फिर 20% स्क्रैप के भाव में इसने मेरे से ले लिया आधे टके, फिर मैं खुश हो गया, असल तो नुकसान किया, लेकिन धंधा खुशी का है। एंड दैट इज व्हाई द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पिरिट हाई रख के चलती आई है। उसमें सूरत इंडस्ट्री एक तरह से स्पिरिट हाई रखा है, बट सूरत इंडस्ट्री हैज बीन वीक ऑन सर्टन मेजर लिंक्स ऑफ दैट। नंबर ऑफ लोग जो पहले रिस्क ले रहे थे, आज वो रिस्क कम ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो पागलपन वापस लाना पड़ा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी हैज रिड्यूस्ड। दूसरा
सूरत के लोगों में, सूरत की हमारी इंडस्ट्री में कंफर्ट जोन पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं। यही रास्ते पे चलूंगा, 8 आने रुपया मिलेगा, चलेगा। फिर मैं कभी जाता हूँ तिरुपुर तो बोलता हूँ यार वो तो 6 रुपए कमा लेता है। सूरत में भी होंगे 10-15 कमाने वाले, बट वो परसेंटेज कम है। આપણે જે રીતે અહીંયા વિચારશું તે રીતે રિઝલ્ટ આવશે। અપ્રોચ આપણો બદલાઈ ગયો છે। હું કોરોનાની વાત કરું, સુરત વોઝ લાસ્ટ ટુ ગેટ સ્ટાર્ટેડ, લાસ્ટ। યસ ઓર નો? કેટલાને ખબર છે? આખા કોરોનામાં લુધિયાના અમૃતસર વોઝ વર્કિંગ। 4 રૂપિયા કોસ્ટ વધારે આવતી એ લોકો, 10 रुपया વધારે માં માલ વેચાતો। હું તકલીફ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि हम लोग उस वक्त सारी एसोसिएशंस में अक्रॉस द कंट्री डिस्कशन हो रहा था। तो सूरत वालों ने कारीगरों को जाने दिया, उन्होंने डबल पे देकर रख दिया, 100-200 रुपए ज्यादा देने थे, रख दिया। तो हमें अपनी सोच को वाइडन करना पड़ेगा। वो क्राइसिस टाइम इतना अच्छा था कि उस वक्त मैं R&D कर सकता था, मैं रिजल्ट कुछ भी क्रिएटिव कर सकता था, मैंने नहीं किया। जिसने किया वो आज बहुत आगे। दैट टाइम वी हैड सो मच ऑफ टाइम इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए। ये तो एक आइडिया था कि उसने बोला 4 रुपए कॉस्ट आती, 10 रुपए बिकता है, क्यों? आप कॉमन सेंस से सोचिए, 45% इंडियन मार्केट रूरल था। यस और नो? मालूम है ना? और वो सारा चालू था, खाने पीने का सामान बिक भी रहा था, आदमी तो वही है, खाएगा तो सही। तो वो उसको पैसा आ रहा था, उसको पैसा खर्चने की जगह चाहिए। 2.5-3 महीने बाद अमेज़न और सबने रीस्टार्ट किया डिलीवरी। हम लोग कहाँ चले गए? माल ही नहीं है डिलीवर करवाने को, तो मैं आपको क्या बोलूंगा मेरा माल बेचो। सो हमारे को अब जो भी प्रॉब्लम दिखता है ना, उसको अपॉर्चुनिटी गिनो। कोरोना वाज अ प्रॉब्लम, हमारे को अपॉर्चुनिटी थी। हमारी अपनी कंपनी में हम लोगों ने जो भी पिचिंग किया था, इतना ज्यादा पिचिंग कर दिया कि आज हम लोग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम लोग ना बोल, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बोला नॉर्मल होता है ना, तो मैं प्रोजेक्ट ने आखो मोटो प्लान करो, કેટલું કરો, બોલે 10 કરશું તો એમાંથી 3 સક્સેસફુલ થશે। કોઈ એસોસિએશન નહીં પણ માને, કોઈ સરકાર નહીં માને, કોઈ માને। અહીંયા 10 માંથી 7 આવી ગઈ, નોટ એક્સપેક્ટેડ। સો વી વર ઓલસો નોટ ગિયર્ડ। તો હવે કઈ નહીં, હવે નાકો નહીં પડાય તો હવે આપણે 100-200 માણસની ટીમ મોટી કરી। પણ એ મોકો હતો, એવા મौका આજે પણ છે। आज हम लोग लकीली तेजी के माहौल में मिल रहे हैं। जितनी बार मंदी आई उसको आप मौका देखो टू टेक अ जंप, तो वो अप्रोच माइंड का चेंज होगा। मेरा आज का मेन फोकस है थॉट चेंज, एटीट्यूड चेंज, एंड रिजल्ट विल बी डिफरेंट। सेम रूट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। कोई ये डिस्कस करना है कि क्वेश्चन हो तो आई एम ओपन, अदरवाइज I can speak on for 2 hours only on attitudinal change and how small company, I was one of your size companies, converted into an institutionalized, professionally managed company। वो भी एक कोई भी कर सकता है, आप सब कर सकते हैं, कोई मैं अकेला नहीं। उसके स्टेप्स हैं, वो अलग बात है। आपकी आज टर्नओवर 5 करोड़ है, आप क्या बोलते हो? आपने 7 करोड़ पहुंची जाए, मजा आ रही है। सॉरी, सोचो बड़ा तो पहुंचोगे, 7 सोचोगे तो 6 पे पहुंचोगे, 6.5 पे पहुंचोगे, 10 सोचोगे 8-9 पे पहुंचोगे, अगले साल 15 सोचो। थिंक ऑफ 10x in 5 years मिनिमम। मारे 10 गणु काम 5 वर्ष में करवानुं छे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाए। There is nothing like कि ये इनके यहाँ बहुत नॉलेज था, इनके यहाँ ये था, अपनी आधी नॉलेज तो वी आर स्टीलिंग लाइक आर्टिस्ट, इंक्लूडिंग मी, एवरीबडी इन दिस टाउन, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। कुछ चीजें हमने अपने बाप दादाओं से चुराई होगी, नथिंग रॉन्ग, चुराया उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी में आए, वो जीन्स में आए, वाले जीन्स कहीं नहीं, मैं चोरी कर।
એને કહેવામાં દેશી લેંગ્વેજ છે, બહુ ક્રૂડ વાત કરું છું, પણ હકીકત એ છે જીન્સ શું હોય, તમે પરવરિશ મૂવી જોઈ હોય ને તો પેલો પોલીસ વાળાનો દીકરો ઇઝ ઇન્ફ્લુએન્સ બાય ડાકુ એન્ડ ડાકુ વાળાનો દીકરો અમિતાભ બચ્ચન ઇઝ ઇન્ફ્લુએન્સ બાય પોલીસ વાળો, તો કેરેક્ટર એ લોકોનું એક થઈ ગયું, પેલો વિનોદ ખન્ના બીકમ્સ અ ડાકુ, तो परवरिश इज व्हाट जीन्स आर। जीन्स एक अलग बात है, बट मैं जिस माहौल में रहता हूँ, जिससे उठता बैठता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू यंग बॉयज हैव थॉट कि मैं सर्किट बदल दूं उठने बैठने। मैं आज इस मेरा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, 10 फ्रेंड्स 15 फ्रेंड्स हम लोग रोज मस्ती करते हैं। अभी मैं सर्किट, अभी मैं आ गया नेक्स्ट लेवल पे, धंधे में आ गया, 5 साल हो गए। अब मेरा सर्किट बदला कौन सा, मेरे 10 वीवर या 10 एम्ब्रॉयडरी। कभी सोचा कि मैं सर्किट बदल दूं? दूसरा सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपसे एटलीस्ट 10 गुना बड़ा बिजनेस करने वाला आपका एक दोस्त होना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, 10 गुना बड़ा धंधा करने वाला आपका एक दोस्त होना चाहिए। दोस्त मीन्स उसके साथ में आपको महीने में 2 4 5 बार बैठना है, धंधे की बात ना भी करो, वैसे भी मिलोगे। और ये सब मैंने एट द एज ऑफ 20-23 किया है, 25-30, 22-20-30। वो आज भी दोस्त हैं, अब आज वो मेरे से भी और आगे हैं, बट आज गैप थोड़ा कम हो गया, वो अलग बात। बट यू लर्न इनफॉर्मली, जो चीजें सीखी जाती है, हर चीज फॉर्मली नहीं होती है। इसीलिए आज मेरे को बोला गया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोग्रेस के बारे में, कहा ये सब जितने भी हैं सब लोगों ने उसका प्रोग्रेस दे दिया है और अभी देने वाले हैं, कल परसों ही परसों को। तो मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़ा एटीट्यूडल के बारे में बात करूं, सोच को बदलो, सितारे बदल जाए। दूसरी हम गलती क्या करते हैं, बोले यार पहला ने ત્યાં ધંધો છે મારો, એમ્બ્રોઇડરી ચાલુ છે, હું પહેલા વીવિંગ કરું। कश्ती बदलने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज करो थॉट में, यू विल हैव अ डिफरेंट रिजल्ट। मुझे इंदौर जाना है तो मैं बॉम्बे के बड़ौदा के रूट पे नहीं जा सकता, सिर्फ 2 डिग्री यूं किया मैं इंदौर पहुंच। थैंक यू। लगता है मुझे लगे हाथ एक अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि लुथरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैचलर ऑफ चोरी के अंदर कोई कोर्स चालू कर रहा क्या हुआ है, बैचलर ऑफ। वेरी वेल सेड, you have definitely focused on soft skills and mental development. टेक्नोलॉजी तो हमारे पीछे पड़ी है, हमें अभी टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि गार्डन के प्रफुल्ल भाई के साथ भी मैं काम किया है मैंने, और श्याम भाई के साथ भी काम किया है, और गिरीश भाई के साथ भी मैंने काम किया है, लुथरा साहब के साथ भी, इन सबके साथ मैंने काम किया है। तो कंप्यूटर जैसी चीज ढूंढने के लिए गिरीश भाई और श्याम भाई बॉम्बे जाते थे कि हमें कंप्यूटर लाना है डिजाइनिंग का, और प्रफुल्ल भाई हमारे गार्डन वाले वो वेट रिडक्शन मशीन के लिए जापान जाते थे। पर आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आपके टेबल पे आपके पास टेक्नोलॉजी आती है तो बच जाती है क्रिएटिविटी। किसी के साथ अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि किसी एक सूरत के यूनिट ने एक समहाउ करोड़ का डिजिटल प्रिंटर डाला है जो 1 लाख मीटर प्रोड्यूस करेगा, 1 लाख मीटर पर डे का प्रोड्यूस करेगा, परंतु बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्रिएटिविटी उसका प्रिंटिंग चार्ज है 29 रुपीज। और मुझे खुशी है कि मेरी यूनिट का प्रिंटिंग चार्ज है 75 रुपीज पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिविटी है। तो ये 1 लाख मीटर प्रोड्यूस करना और 29 रुपये में छापना मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है कि ये क्रिएटिव वर्ल्ड है, और क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर आपको फैब्रिक डेवलपमेंट में, उसकी डॉबी और जैकार्ड की डिजाइनिंग में, उसकी प्रिंटिंग में और उसके सरफेस ऑर्नामेंटेशन यानी कि वैल्यू एडिशन में आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमारे सभी वक्ताओं ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, गिरीश भाई ने मेंटल डेवलपमेंट के लिए और मोटिवेशनल जो बातें की, एटीट्यूड चेंज करके हमारे व्यापार के अंदर और हमारे पारिवारिक संबंध और व्यापारिक संबंध में इस प्रकार की सोच को एडॉप्ट करने से हमारा जो डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से वो समझा पाए हैं। और इस कार्यक्रम के अंत की तरफ जाने से पहले
मैं आप ऑडियंस में किसी को, हमारे वक्ता को कोई क्वेश्चंस हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू परिमल भाई। आई हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन मेरा है आपको कि जैसे देखिए आप रिटेल के स्टोर चलाते हैं, हम तो होलसेल में हैं, जैसे गिरीश भाई कहते हैं, तो होलसेल का एटीट्यूड अलग है। हमको तो हर एक बार बनाया तो कोई प्रोग्राम जैसे 12 दिन का हम तो ऐसे सोचते हैं, तो आपको तो ये यू आर वेरी क्लोज टू द कस्टमर। तो हम आपसे सूरत की इंडस्ट्री की ओर से, विभिन्न इंडस्ट्री की ओर से ये जानना चाहते हैं, ये जानना इसलिए भी चाहते हैं कि आई ऑल्सो हैपन टू बी इन द बैंक एंड लुकिंग आफ्टर सम एप्लीकेशन फॉर लोन फॉर न्यू मशीनरी। तो वहाँ एवरी डे वी रिसीव सो मेनी एप्लीकेंट्स, वो लोग नए मशीन लेके आते हैं। तो अभी से आप भी ऐसा ही बताए हमें कि सूरत में जो कपड़ा है उसमें जो बड़े बीट का कपड़ा आगे चलेगा या जो फॉल फील है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसे 90 आउट ऑफ 10 एप्लीकेशन जो आती है उसमें 8 एप्लीकेशन मॉडर्न की होती है, वो अच्छी बात है। तो उसमें भी सबसे पहला नंबर वाटर जेट है या दूसरा नंबर एपियर है और थर्ड नंबर पे एयरजेट है। ये सूरत का जो प्रोग्रेस पार्ट है इट इज लाइक दिस। तो आप क्या चाहते हैं, क्या बीट आगे चलेगी या क्या फॉल बीट चलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन महेंद्र भाई। देखिए मैं जो रिटेल करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में डील कर रहा हूँ, तो इट्स ए वेरी वास्ट इंडस्ट्री। कोई वुमेन्स वेयर के लिए काम कर रहा है, कोई वेस्टर्न वेयर के लिए कर रहा है, कोई किड्स वेयर के लिए कर रहा है, कोई मेंस वेयर के लिए कर रहा है। तो हर कैटेगरी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। उसका फैब्रिक वेट क्या होगा, उसका काउंट कंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसका एंड यूज क्या है, बॉटम वेयर है, टॉप वेयर है, टेप वेयर है। सो इट्स ए वेरी वेरी वास्ट कैटेगरी। उसके मैं अपनी कैटेगरी के बारे में बोल सकता हूँ, और ऐसे ही आपके अलग अलग कैटेगरी के बायर होंगे जो आपको गाइड करेंगे, या जो आपका मेजॉरिटी बायर है वो कैटेगरी के बारे में आप सोच सकते हो कि आपको किस तरह की टेक्नोलॉजी। अभी ज़्यादा विस्कोस का कपड़ा कॉटन में भी है, आप विस्कोस ज़्यादा यूज करते हैं? मैं विस्कोस ज़्यादा यूज। सूरत की जो परिस्थिति इसमें पॉलिएस्टर ज़्यादा बनता है, तो उसका भविष्य क्या है? क्योंकि हर देश में अभी पॉलिएस्टर का डिमांड तो काफी अच्छा है। मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मेरे को विस्कोस का फॉल फील अच्छा लगता है, लेकिन मुझे स्ट्रेंथ पॉलिएस्टर की अच्छी लगती है। ठीक है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम लेके अक्षय भाई के साथ बैठा था एक दिन रात को, तो मैंने बोला सर ये प्रॉब्लम है, विस्कोस लेता हूँ 100% तो वो कपड़ा लिपी हो जाता है, मज़ा नहीं आता। पॉलिएस्टर लेता हूँ तो सिंथेटिक है, मेरे को बेचने का दिल नहीं करता, क्योंकि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ 10 महीने की गर्मी है, 2 महीने की सर्दी है। तो अगर जिस कस्टमर को हम बेच रहे हैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इसका क्या समाधान है? तो अक्षय भाई ने मेरे को अगली बार जब मैं आया 10 कपड़े ऐसे बना के दिए जिसमें वॉल पे पॉलिएस्टर था, वेस्ट में विस्कोस था, कॉटन था, ब्रांडिंग करके इतने अच्छे कपड़े बना दिए जो कि हमने कितने लाखों मीटर बेच दिए कि आप सोच ही नहीं सकते। इट्स ए वेरी इनोवेटिव आइडिया टू ब्लेंड द फैब्रिक एज पर योर कस्टमर नीड्स। ओवर टू भरत भाई। संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि भाई आपने जो ये मॉडर्न ज़माने में बेंचमार्किंग बोलते हैं, नहीं तो जनरली पहले क्या था कि एक सीक्रेट रहता था कि भाई आदमी अपनी बात किसी को बताता नहीं था, लेकिन आपने जिस तरह से यहाँ जो आपका ये दिया वो बहुत आप धन्यवाद के पात्र है। और जो आपकी एक बात में मैं सब आपको आप समझा दूँ कि आप अभी जेंट्स टेलर देखो कि कपड़ा देखो, तो अभी ये सब लोग रेडीमेड गारमेंट पहनते हैं। बहुत कम लोग अभी भी इंडिया में है कि भाई आप टेलर के पास जाओ सिलाओ। फॉरेन में वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ कस्टम मेड, और वो महंगा पड़ता है। और इसीलिए आपने जो 10 साल बाद जो आने वाला है वो आपने जो राह दिखाई कि भाई कपड़ा तैयार, और जो भी रिटेल काउंटर है हमारे में ऐसा बोला जाता है कि भाई जो रिटेल काउंटर पे जिधर कैंची चलती है वहाँ से फिर सब फीडबैक मिलता है, और वहाँ से ही फिर आपको जो भी
ट्रेंड करने का है या आपकी घराकी कैसी चलेगी उसको ही, अगर रिटेल चला तो फिर आगे बैक टू बैक सब चलता है। दैट इज द। और दूसरी बात है कि जो गिरीश भाई ने बताया चोरी वाला मामला, तो मेरी आपसे गिरीश भाई एक सवाल है कि 250 साल पहले इंडिया में ही सब था, पूरा एक्सपोर्ट इंडिया से होता था, जेकार्ड। और आज भी जो बनारस में आर्टिसन है, पाटन का पटोला बनता है, इधर का बेंगलोर का जो कपड़ा बनता है, जो सालेम में कपड़ा बनता है, वो कपड़ा आज भी समझोगे भाई आप पिकानोर का ये लाओ, कंप्यूटर लाओ तो भी नहीं बनता है। एक्चुअली उधर से ये कॉपी होता है। तो ओरिजिनल चोर कौन हुए? हम हुए कि वो हुए जो अपनी टेक्नीशियन ब्रिटिश में लिखे गए वो, और उनको अपने वही बोला जाता है कि कारीगर के हाथ काट दिए थे। तो इसका जवाब मैं देता हूँ। हमारे इतने सारे टेक्निक्स हैं इंडिया में जो बहुत पुराने हैं, इतनी है, मैं इसको धरोहर कहूँगा। आप बगरू देख लीजिए, आप कलमकारी देख लीजिए, आप देयर आर सो मेनी नेम्स, इक्कत देख लीजिए, ये सब भारत की धरोहर है। आज अगर ज़ारा देखेंगे, H&M देखेंगे, दे आर कॉपिंग आवर पेस्ट्रीज, दे आर कॉपिंग आवर पैटर्न्स। सो अगर हम उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, नो, द इंस्पिरेशन हैज गॉन फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। आज से 20 साल पहले अगर आप ज़ारा को देखते तो आपको ब्लैक, ग्रे, ब्लू के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। आज वो सब वही यूज कर रहे हैं जो इंडिया की धरोहर है। आई मस्ट से यू आर वेरी राइट। ये ओरिजिनली तो हमारे से कॉपी हुआ था, कोहिनूर तो इंडिया से ही गया था। आज इंडिया अगर वापस आ जाएगा, में जो कपड़ा बनता है, मणिपुर में बनता है, सब उड़ीसा में बनता है, वो last week I was there, amazing, amazing. So here, this is where the whole story started. Yes. They were smart artists to, उन्होंने हमारी चोरी 300 साल पहले की, तो एक आर्टिस्ट की तरह उसको एक्सेप्ट करके चेंज करके चोरी किया। उसको we will bring it back। मैं उसको ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं क्या बताया, 400 साल हो गए, हम 400 साल से ओरिजिनल क्रिएशन के नाम पे अब एक चीज हमें 1%, 0.1% आती है। बाकी क्या हो रहा है कि मैं आपका, आप मेरा, वो उसका रोटेशन में शायद अभी आपको मैंने 99 में एक मशीन का पेटेंट लिया था। वो मशीन मतलब एकदम ओरिजिनल इन्वेंशन था, तभी पेटेंट मिला। सूरत में 300 मशीन बिक गई, उसमें से 299 को नहीं मालूम होगा इसका डिजाइनर कौन। Fair enough, that is also okay. When I say that हमारी स्ट्रेंथ है, मेरा ये कहना है, मैं हिस्ट्री भूल जाता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ हम चोर हैं, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, मैं चोरी करता हूँ। अभी इनका बेटर वर्ड यूज करो तो मैं इंस्पायर होके वो प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो उसको एक आर्टिस्ट की तरह बनाया। क्रिएटिव एडिशन, टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। मैं अभी बता रहा था डिजिटल प्रिंट आया अभी 15 साल पहले, 20 साल पहले, राइट। पहला स्क्रीन प्रिंट 4 कलर मैंने 83 में किया, 84 में, 85 में। टाई एंड डाई क्या है? Tie and dye अलग है। When I say I can print Bharat Bhai's photograph on a paper without digital print on a screen, तो वो तब था, सिवाय हमके की स्क्रीन बनाना, तब स्क्रीन बनाने के लिए मशीनें नहीं होती थी, बॉम्बे जाके वो फिल्म आती थी बन के, ग्रेट वाली, नहीं रोटरी पर नहीं, फ्लैट बेड, and there were other challenges, but उसमें बहुत सारे फेलियर भी होते हैं। तो क्रिएटिविटी में फेलियर से डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। बाकी तो मार्केटिंग है। ગિરીશભાઈ, આપણે અહીંયા કાર્યક્રમને વિરામ આપવાનો સમય થઈ રહ્યો છે। એક સક્સેસફુલ કાર્યક્રમના અંતમાં આભાર વિધિ માટે હું શ્રી પ્રફુલ્લભાઈને વિનંતી કરું છું કે આ કાર્યક્રમની સફળતાનો શ્રેય જેમને આપવાનો છે તેમની આભાર વિધિ વ્યક્ત કરે। ધન્યવાદ। थैंक यू वेरी मच। आज के इस सेमिनार के अंदर
मुरब्बी श्री संदीप भाई कपूर जी स्पेशल दिल्ली से यहाँ पधारे। आपने काफ़ी आपका समय दिया है हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हमारे दीदी भाइयों के लिए, और जो अगले ट्रेंड आने वाले हैं उसके बारे में आपने कुछ अवगत किया है, तो हम आपका चैम्बर की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर दिया, और ख़ास करके आपके हमारे परिमल भाई वखानी आपके बहुत अच्छे खातिरदारी मैं समझता हूँ कि आपने आज की होगी, और आगे भी आप ध्यान देना। और फिर से जब भी हमारी चैम्बर को आपकी ज़रूरत पड़े, हमारा रिवर्स भाई होते तो आप जरूर यहाँ नेक्स्ट टाइम भी बता रहे, ऐसे आपको अर्ज करते हैं। यहाँ हमारे बीच आज गिरीश भाई लुथरा भी आए हैं। गिरीश भाई लुथरा भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उन्होंने काफ़ी जो नई बात आपके सामने रखी है उसके बारे में भी आपको सबको सोचना पड़ेगा। भरत भाई ने भी खूब अच्छे सवाल किए। मैं मानता हूँ कि यहाँ जो सब रिवर्स भाई बैठे हुए हैं उसको आज कुछ न कुछ जानकारी नहीं है। यहाँ अक्षय भाई बैठे हैं। अक्षय भाई, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स भाइयों को ऐसी एक सलाह दीजिए, ऐसा एक फोरकास्टिंग दीजिए आप उनके साथ में बैठिए कि भाई कौन सा फैब्रिक्स अभी आगे के टाइम में चलने वाला है और क्या आपको बनाना चाहिए। भले ये प्राइवेट बात है, प्राइवेसी, मगर ये थिंक ऑफ अदर आपने बाद में आप ऐसे प्रोग्राम हम करेंगे। हाँ, हर सेगमेंट रिक्वायर्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक। See, ये भाई अगर इनके मार्केटिंग अगर हायर रेंज में है तो they can't sell that polyester by viscose. They can sell only viscose by viscose. जजमेंट तो मैं जिनसे बिजनेस कर रहा हूँ या मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एरिया क्या है, मैं किसको कैटर करना चाहता हूँ, यहाँ सूरत में क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अंगारे नहीं यार नो विसा से आपको है बिजनेस पट्टी એમ નથી મારે શું બનાવવું છે તમને ખ્યાલ આવી જશે જેનો ભવિષ્ય વધારે છે તો તમે એ પ્રમાણે ટેકનોલોજી લાવો। અહીંયા ગાડી વોટર જેટ નાખ્યા પછી એ પૂછવામાં આવે છે ગાડી પોટ વધારે તો પછી એની ફિટ કરવા માટે મારે શું કરવાનું, લેપી એની અંદર અમારું પ્રોડક્શન ઉઠાવે શું કરવાનું, બધા મશીન શા માટે લીધા તે જરા મને એનો પસંદ બતાવો। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફેબ્રિક્સ નું ફોરકાસ્ટિંગ ફેબ્રિક્સ નું ફોરકાસ્ટિંગ થોડું આપ કરતા રહો, એવી ખાસ હાથ કરું છું। અને પરિમલભાઈ આમાં તમે ચોક્કસ આગેવાની લેજો। બીજા ખાસ તો ભરતભાઈ ગાંધી અને ખાસ करके दीपकभाई मुंद्रा भी यहाँ बताए हुए हैं, उनका सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप व्यूअर्स भाई भी यहाँ सेमिनार में बता रहे हैं, आपका भी सबका आभार प्रकट कर रहे हैं हम लोग। महेंद्र भाई काजीवाला, कृष्णानी जी, इंद्रवर्धन भाई, नवीन भाई, अक्षय भाई यहाँ बधारे हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।